तो डाल लो तेल। ఇలా बनके चलो। Hare Krishna. So we met last week, and I hope all of you remember where are we, which book we are studying. So I'm so grateful that at least you are aware we are studying which book. And I guess we finished the preface of this book in the last week. So today we are planning to begin with the verse 1, but before that I thought to give a synopsis of the all the 11 shlokas in a very short way, in maybe 2 or 3 minutes, and then we will venture into the text one, and we try to finish as much as possible. So we have two options for all of you. Option number one is, obviously we're going to take both. Like I have a PPT made uh, which goes more into the uh, details in terms of Vachu Vegam, for example. One aspect we go into a lot of detail in that. And then we also have Prabhupada's book, which we need to also cover parallelly. So I just thought, because tomorrow we're meeting at 9 o'clock, and then at 9:15 it may happen. Prasadam, and after Prasadam, after morning class, then Prasadam, and then another class. So that time it may become a little bit difficult to digest difficult things. So I thought now all of you are very fresh, seems to very fresh. So we'll take a little difficult part in the sense it's not that difficult, but very interesting now. And tomorrow we'll see from the Prabhupada's book. But obviously we touch some parts also now. So anyone remembers from a last class, maybe 1 or 2 points from last class, what we took? Any highlight points? Again, for instruction, and Goswami, specifically Rupa Goswami, he was one of the leaders who executed those instructions. Any other point? Okay, that was in connection with what? Four defects. In what context we discuss four defects? Yes, so we all have a cheating tendency, and that's why uh, he said. No, first it told instructions and then it told defects. Actually, we can use mic, then online devotees can also hear what you're saying. Otherwise, they can't hear. The conversation between Brahman and Vidya Devi. Yes. To whom Vidya Devi goes and what is the fear she has? We saw that. What else? We have to become Goswamis. Any other point? Very one of the highlight $1 million statement of Srila Prabhupada in the preface. Progress in Krishna consciousness depends on the attitude of the follower. Yes, perfect. What is that attitude? What we show in college? That attitude? Attitude of gratitude. Yes, correct. And what else? Anything else? Only gratitude? Only gratitude? Actually, if you see, gratitude is a womb of all good qualities. Someone develops gratitude, then naturally humility, tolerance, all those other things also come. Like just like with the king, all his courtiers also follow. Similarly, with gratitude, all these qualities also follow. Anything else? Qualities of Brahmana, Shama, Dama, Tapa, Shaucham. You told about them. Okay. Param Brahma. Correct. Okay. So when you, yes, you want to say something, Vishnu? Types of unqualified students. Yes, types of unqualified students. What are the types? One who envies Vedic knowledge, one who is not in simple in his mood and intentions, one who is unwilling to put record effort and self-control. We also saw something five. Something five. The फाइव प्रिंसिपल ऑफ स्टडिंग शास्त्र उनका Five साउंड आ रहा है क्या principles. इधर ऑनलाइन ड्यूटीज का
They're able to say. Online devotees, can you say something so we can understand whether we will be able to hear you? Hare Krishna, are we audible? आवाज इतनी है. अक्षत बोल रहा था, आवाज नहीं आ रहा. Take a little time, bro. Sorts it out. So we saw something 5. What was the 5? ऐसा कुछ देखा कि हमने 5, मैंने 5, 1, 2, 3, 4, 5 लिखा था. एबीसी नहीं रहे, क्लास में तो डिस्कस हुआ पूछा मैं. प्रॉपर मेथड ऑफ स्टडिंग शास्त्रस. क्या था पहला? क्या था? पदच्छेद, है ना. उसके बाद Hare Krishna, are we audible? विग्रह. उसके बाद चौथा वाक्य योजना, और 5वां आक्षेपस्य समाधानम. तो ये 5 चीजें हमारे इसमें आना चाहिए स्टडी करते वक्त. तभी आपका स्टडी कंप्लीट, कहा दैट विल बी कंप्लीट स्टडी और दैट इज अ प्रॉपर स्टडी. ओके. हाँ. यस, व्हाट वाज दैट? साध्य एंड साधना. साध्य इज एंड साध्य. साध्य क्या है अपना? दैट्स फाइन, बट व्हाट इज साध्य? इज कृष्णा गोल. Hare Krishna, am I audible? एंड देन साधना इज भक्ति होगा. Hare Krishna. Okay, so before beginning this, I'll just share the screen. हाँ. The which shloka tells about what level? वो भी हमने देखा था. Yes, what is that? ये शेयर होता है ना प्रॉपर लेवल? कृष्णा ब्रो, शेयर होते पाऊंगे होते. मला ही स्क्रीन पाहिजे, तुम्ही दुसरी पहा कुठली स्क्रीन. ही वाली. तिकडे आहे. Okay, so now text number 1, first verse, it talks about initial difficulties that a sadhaka experiences. Text number 1, it talks about the initial difficulty, like वाचो वेगम, अपना कंट्रोल नहीं होता है बोलना. अनुभव है ना आपको? आपको मतलब सबको, हम सबको. वाचो वेगम, मनस क्रोध वेगम, ये सब चीजें है, ये सब हमारा डिफिकल्टीज है. दीज आर ऑल स्ट्रगल्स व्हाट वी आर अंडरगोइंग. वी आर नॉट एबल टू कंट्रोल देम, है ना. दैट्स व्हाई इट इज टोल्ड टू दैट फर्स्ट वर्स वी टॉक अबाउट दिस. नाउ सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ वर्स विल टॉक अबाउट व्यवहार विद डिवोटीज and people who are not on the path of bhakti. Vyavahar means dealings with devotees as well as with maybe non-devotees also on the path of, and those elements that are favorable and unfavorable for the cultivation of bhakti. So the second, third, and fourth will talk about these things. Then fifth and sixth shloka will talk about what kind of association is required for one's devotion, type of association, and how one should behave with the 3 levels of devotees: Kanishta, Madhyama, and Uttama, and as well as pure Rasika devotees. What we talked about previously,
Raga Bhakti. I was speaking in the Raga Bhakti, there are Ragatmika devotees. For whose, what is Ragatmika? I told about this, Ragatmika Bhakti. For whom his life is Krishna. Rag is Krishna. Attachment is only for Krishna. Like we have gopis and we have Nanda Maharaj and Yashoda and all those Brajavasis. So someone wants to become Raganuga or Hare Ragatmika. Krishna, He has am I audible? to follow the footstep of these devotees. Okay. Hare Okay. Krishna. Then shloka 7th and 8th will talk about how one should chant holy names. When one eventually gains Harinam, one should engage constantly in services under the guidance of a resident of Raja. That's what I said. Raganuga. What is Raganuga Bhakti? Means you follow someone from Vrindavan. That is Raganuga Bhakti. And Shloka 9th, 10th, and 11th will talk about various holy places of Rajdham in accordance with Rasa. And highest point of is to do bhajan on Radhakunda. है ना? So someone may say, so let us go to Radhakund directly. है ना? कोई बोल सकता है ऐसे. But unless and until one undergoes the first 10 stages or 9 stages, he doesn't get a qualification to, or he will not able to see Radhakund in a proper perspective. We'll see Radhakund as a pond. We'll see Radhakund as a place where so much of, so many devotees have gathered. Unclean place. We'll always see like that only. Why? Because we will still have the material vision. But by the grace of Rupa Goswami, we'll get an opportunity to begin from Ado Shraddha up to, it's like a crash course, as I said that day, crash course in the bhakti, on the path of, progressive path of bhakti. So text 1 is seen in front of us. So we'll try to recite it and then we'll enter into details. Vacho vegam manasakroda vegam Jivva vegam udaropasta vegam Etan vegan yo vishaheta dhiraha Sarvam api ma prithvim sashishyat. By the way, in your Bhakti Shastri, one of the part of your study is to learn shlokas. You will have a shloka test, oral shloka test, where the teacher will be sitting and you will be sitting and you will be asked to recite the shloka and the translation. So don't worry, what we'll do is every time we have a class, we'll repeat few times and then we'll get to learn. Vacho vegam manasakroda vegam Jivva vegam udaropasta vegam Etan vegan yo vishaheta dhiraha Sarvam api mam prithvim sashishyat. Vacho vegam manasakroda vegam Jivva vegam udaropasta vegam Etan vegan yo vishaheta dhiraha Sarvam api prithvim sashishyat. Anyone wants to try? Vacho vegam manasakroda vegam Jivva vegam udaropasta vegam Etan vegan yo vishaheta dhiraha Sarvam api mam prithvim sashishyat. One more. Vacho vegam manasakroda vegam Va vegam udaropasta vegam Etan vegam yo vishaheta dhiraha Sarvam api mam prithvim sashishyat. Okay. So as we discussed the 5 elements, we'll try to go in that way for all the shlokas. Interestingly, if you see Hare Krishna, this am I particular audible? composition, Vacho Vegam,
Rupa Goswami, I was hearing from Hari Parshad who he was mentioning this point. I just took the image of that. So what he said, what he showed is this. You see, every word in that arrange, it has 11 syllables. So it talks about how Hare Krishna, am I 11 audible? syllables, like there are two words. This one is called Laghu. Hare Krishna. There are two types of, but it may not be always that the combination you may not be able to count in a particular way because arrangement is in a certain way. But according to grammatical rules, it is arranged in a particular way. So Hari Parshad was mentioning every shloka has a meter in which we recite. So this shloka, the meter, like we have this Gayatri Chandaha, for example, or we have any other examples you remember? Anushtupa Chandaha. So this is a meter in which they recite. So in which the meter here is Upajatihi. In this, it is recited in particular. There are different ways we can recite. Hari Parshad would recite in different way. I am not used to that tune, so I recited in this way, what we recited. So you see every line, there are 11 syllables in the every line. So that is the beauty of our acharyas. You know, they are not just poets to compose something. Like in Bhagavad Gita also see, the arrangement is very typical. Anushtupa Chanda in Bhagavad Gita, right? And here also you get to see that, you know, you count it like we have, I think so, Rupa Goswami has composed Charitravali or something, Padyavali, not Padyavali, something else. I don't remember the name right now. He has composed in such a way that you recite like this or you recite like this, same. मतलब ऐसा लेफ्ट टू राइट पढ़ो उसको या फिर राइट टू लेफ्ट पढ़ो उसको तो सेम ही आएगा. एक चक्र कविता बनाया उन्होंने. It goes in chakra, like kind of a circular form. Different varieties, you know, they are like, you know, nowadays we have people who can, you know, play cricket or some games. We consider them a champion. Those days, champion would be someone who can, one thing is either debate or they can compose such nice poetry. You know, Rupa Goswami or Jiva Goswami, just in a very lighter note, I'm saying this. For them, what we say, time pass, would be composition of shlokas. They had composed because अभी क्या करें, ठीक है, श्लोक कंपोज करेंगे. देखो हम क्या क्या करते हैं ना. We have WhatsApp and we have social media and so many things for doing time pass. But they have, for them, what it was, composing different poetries or shlokas or stotras or glorification of the Lord. They will do. So we get to see in this, this called Anvaya, what we're seeing here below. The whole shloka is divided in such a way that the meaning itself will come out of this. So Anvaya basically means what? It is a natural order in which the shloka goes. Like if you see, like Vacho Vegam, but it begins with what here? Sa. Sadhiraha, that sober person. If you see the translation of Prabhupada from a book, what we have is a sober person who can tolerate the urge to speak. But sober तो कहाँ पे है इसमें? श्लोक में कहाँ है? कहाँ दिख रहा है आपको? Actual श्लोक में? धीरह, third line में है. So you are arranging the shloka in such a way that it becomes a prose. It becomes a translation basically, line by line translation. That's how you get to see that. That's why the word Sadhira came in the. So sequence is like from top to bottom here. And they're also from top to bottom like that. I was saying, what is the meaning of Anavaya? Remember the 5 aspects of what last thing I asked you. One of the things Anavaya. What is Anavaya? You divide the shloka in such a way that the translation goes in sync with the shloka. मतलब देखो अभी श्लोक क्या है यहाँ पे? वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम. पर इधर सीक्वेंस क्या 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 लिखा है? सधीरः यो विषहेत एतान वेगान वाचा वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम शिष्यात अपि इमाम सर्वम पृथ्वीम. तो अपने सेम श्लोक को क्या किया? इस श्लोक पे तो मीटर में था, हमने मीटर से गाया. अभी वो श्लोक के हम क्या कर रहे हैं? अभी उसको इस तरह से अरेंज कर रहे हैं कि इट गिव्स आउट अ ट्रांसलेशन सिक्वेंशियली. समझा अन्वय मतलब क्या? हाँ या ना? अब जैसे भगवत गीता अगर अन्वय करेंगे तो उसमें जैसे ट्रांसलेशन होता है ना, उसके हिसाब से वो वर्ड्स आगे पीछे हो जाते हैं, श्लोक के वर्ड्स. उसको
कोई भी श्लोक के बारे में, मैं एग्जांपल दे रहा हूं भगवद गीता का। अन्वय क्यों करते हैं? क्योंकि हर एक वर्ड का मीनिंग पता चले, नंबर वन। दूसरा, आपका ट्रांसलेशन, मतलब इट्स लाइक फॉर अस वी अंडरस्टैंड दैट ट्रांसलेशन हैज बीन हैपन प्रॉपरली, Hare प्रॉपर Krishna, ट्रांसलेशन am I हुआ है। audible? Now we may have at times Hare genius of the Krishna. authors, we may add some words in that. We'll see today some things, है ना। तो आज का मेरा जो टारगेट है, आज का हमारा क्लास का, दैट इज ओनली वाचो वेगम, इसका पहला, है ना। स्लो ठीक है ना आप लोगों, आपको घाई होगा तो फास्ट कर सकते, बट स्लो करेंगे तो हम रिलिश करेंगे, है ना। जैसे हमने लास्ट टाइम देखा है ना कि जो जो रसिक भक्त होते हैं, दे रिलिश। इफ यू रिलिश देन यू कैन सी व्हाई डू वांट टू रिलिश शास्त्रस। हम रिलिश, शास्त्रों को रिलिश क्यों करते हैं, फिर क्यों करना चाहिए हमको शास्त्र को रिलिश? क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। इज इट नेसेसरी टू रिलिश शास्त्रस? हाँ, तो क्यों रिलिश करना चाहिए? शब्द ब्रह्म है, लेकिन उसका रिलिश से क्या संबंध है फिर? ठीक है, शब्द ब्रह्म अपनी जगह पे है ना। हाँ, एक है कि भाई वी गेट अ हायर टेस्ट। अभी हायर टेस्ट हमको क्यों चाहिए? व्हाई डू नीड अ हायर टेस्ट? Yes, because many of us we have so many lower taste, Hare so many Krishna, bad am I habits, audible? so many things we want to give Hare it up. Krishna, What we call uneartha, useless things. Many of us we may be Hare carrying. Krishna, Now it's not like uh, okay, for me this maybe this book is useless. Let me throw it off. So for us to give up uneartha is not that easy. Why? Hare Krishna. Hari bol. So why it is difficult for us to give up unearthas? We don't have. तो ऐसा गोल घुमा दिया आपने। हमको हायर टेस्ट नहीं, इसलिए हमको अनर्थ नहीं छोड़ सकते, अनर्थ छोड़ नहीं सकते इसलिए हायर टेस्ट नहीं है। तो उसका एंड ही नहीं ना कुछ। यस प्रो, ठीक है, मिलियंस ऑफ लाइफ टाइम्स है, डीप रूटेड है, गुड। और सो लिविंग एंटिटी एनीवेयर हैज सच्चित आनंद, उसको आनंद लेने का उसका एनीवेयर टेंडेंसी है। अनर्था किसमें क्या होगा? इट इज लाइक मिसडायरेक्टेड नाउ। हम कहीं और, हमको लगता है ये करने से मैं आनंद ले लूंगा, इसके लिए हम उसके पीछे पड़े। दैट्स व्हाई। एनी अदर रीजन? मतलब क्या? नहीं, वो सब ठीक है, बट कंडीशन है, मतलब क्या? मतलब एक इन वेरी सिंपल लैंग्वेज, है ना, हमारा क्या हो रहा है? छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो। हमने हमारे अनर्थ को इतना टाइटली पकड़ के रखा है, हमको लगता है हम क्या बोल रहे हैं? छोड़ो मुझे। पर छोड़ भी नहीं रहे हम लोग, हम छोड़ भी नहीं रहे हैं। और उसका मतलब उसका कोई ऑल्टरनेटिव भी नहीं है अपने पास। दैट्स व्हाई वी शुड, सो दैट्स व्हाई वी रिक्वायर साधु, गुरु, साधु एंड शास्त्र। एंड व्हेन यू डू शास्त्रिक स्टडी स्पेसिफिकली, हम देखेंगे आगे, लाइक भगवद गीता 17.15 आई थिंक सो, अनुद्वेग करम वाक्यम, है ना। उसमें एक कहा गया है स्क्रिप्चरल स्टडी के बारे में, हाउ कृष्णा, दैट विल सी लेटर। आई एम जस्ट मेकिंग अ पॉइंट हियर दैट फॉर अस right now we may not have taste for shastras. Why? Because we may have taste for other things. But when the same thing becomes very interesting, that the same thing can help us to gradually develop a taste. जैसे किसी को जॉन्डिस हुआ है, फॉर हिम द मेडिसिन इज शुगर केन जूस। पर उसका प्रॉब्लम क्या है? जब शुगर केन जूस पिएगा वो उसको कड़वा लगेगा। नाउ इज इट, नाउ टेल मी वेदर शुगर केन जूस इज कड़वा? वो व्यक्ति का टंग इज एक्चुअली, ये जो मैं बोल रहा हूँ, दिस वन ऑफ द श्लोकास इन एनवाई। व्यक्ति का जो जीवा है, द टंग हैज बिकम jaundiced because of a layer of jaundice. So for him, he is not able to perceive the sweetness of the sugarcane juice. The same sugarcane juice that is sweet is appearing to him as bitter. Same thing for us. Similarly for us, holy name is so sweet. Rupa Goswami himself says, like when I recite the holy names of Lord, when I say the syllables Krishna,
I feel I should have millions of years. I should have millions of tongues and I should have millions of years. And then when the holy name enters my heart, the whole thing expands to another degree. So this is the experience of Rupa Goswami chanting Hare Krishna. And what is our experience of chanting Hare Krishna? I'm not saying Kirtan, I'm saying Japa. Bhakti Brut Bhagavat Maharaj is saying that we take vow during initiation of 16 rounds of chanting Japa. We don't take vow of, okay, I'll do Sankirtan or Harinam. Of course, I'm not minimizing the Harinam. Harinam has its own benefit. Because Harinam we generally do for whom? For masses. For everyone. And Japa is for whom? Ourselves. So Japa is like you murmur. It's for your own self. Harinam you like scream or at times, you may sing loudly. Right? So, why we are discussing this? I was telling you how Rupa Goswami has a higher taste in chanting the holy name. That is his experience chanting Hare Krishna. And our chanting Hare Krishna is like, experience is like a jaundice patient drinking sugarcane juice. At time we में फिर मुझे टेस्ट नहीं आ रहा है मुझे. मैं 4 साल 5 साल से जब करने का प्रयास कर अभी टेस्ट नहीं आ रहा है ना? Why? Because we are not left our lower taste and we are never accessed the higher taste which is available for us. So we are getting an opportunity here to try as an opportunity for getting that higher taste through scriptures. And again, same thing for scripture, just like for holy name. Same time now, scriptures may appear boring at times. Like when you read Bhagavad Gita or you read Krishna book, for example, you read second chapter of Krishna book, prayers of personified Vedas, for example. या फिर you have some second canto or first canto कुछ section ऐसा लगता है कि बाप रे क्या चल रहा है, fifth canto, है ना? So why that happens? Because the taste is not yet arisen. So basically NOI or Upadesh Amrut is helping us to gradually develop that taste, not only to the holy name, even to the scriptures. So same thing, we may have a distaste for association with devotees. तो हमको क्या लगता है? Devotees मतलब कौन? कौन devotees है? सब बाहर वाले ये ग्रुप छोड़ के, है ना? ये ग्रुप छोड़ के सारे devotees है. कभी कभी हमको ऐसा लगता है. कभी कभी हम लोग एक दूसरे को ऐसा बिहेव करते हैं कि भाई डिवोटी है कि नहीं, ऐसा लगता है ना? तो टू फर्स्ट अंडरस्टैंड कि डिवोटीज कहाँ है. आई एम एस्पायरिंग टू बिकम अ डिवोटी समडे एंड पीपल अराउंड मी, डिवोटीज अराउंड मी, दे आर एक्चुअली डिवोटीज. वांछा किसको करते हैं हम लोग? सभी को करते हैं ना. जब मंगलाती में आते हैं, आई वाज टेलिंग लास्ट टाइम, वी ऑफर ओबेसिस टू एवरी डिवोटी. इट्स नॉट ओनली फॉर द टेम्पल प्रेसिडेंट और ओनली फॉर द काउंसिलर्स, ओनली फॉर द मेंटर्स, ओनली फॉर द वी सैफरन डिवोटी. ऐसा नहीं, इट्स फॉर एवरीवन, एवरी डिवोटी. So we are embarking on a journey for developing a taste for our scriptures. Okay. Now, what is translation from the book? Someone can read the translation, Prabhupada's translation. A sober person who can tolerate the urge to speak, the mind's demands, the action of anger and urges of the tongue, belly, and genitals is qualified to make disciples all over the world. Is qualified to make disciples, है ना? शिष्यात. हम after some time we'll go into the word शिष्यात, we'll discuss about शिष्यात. So qualified to make disciples मतलब क्या? डिसाइपल बना सकते हैं ना. क्वालिफाइड मतलब चलो भाई, क्वालिफाइड टू बिकम गुरु. वाह, वेरी नाइस, गुड. इसको बस होल्ड करके रखो. इसको मैं नहीं, शिष्य बनाना और प्योर अलग बात या डिफरेंट. हाँ, पर शिष्य बनाने से ही आप गोस्वामी बनेंगे ऐसा नहीं है ना. मतलब मिनिमम आपको गुरु बनना है, तभी आप फिर गोस्वामी बन पाएंगे, या फिर तभी आप शुद्ध भक्ति कर पाएंगे. ऐसे
ओके, तो ये जो आपके ओपिनियंस है इसको थोड़ा सा याद रखो, आई गेट बैक टू दैट लिटिल लेटर, है ना? ओके, तो सी नाउ विल सी द दिस अन्वय. स मतलब दैट, धीरः सोबर इंडिविजुअल, य और यो हु, विषहेत. एक्चुअली ना व्हेन यू अंडरस्टैंड द मीनिंग तो उसको लर्न करना बड़ा इजी होता है, तो इसलिए मैं ये कर रहा हूँ. विषहेत मतलब जो उसको टॉलरेट कर रहा है, और एतान ये सब, एतान. वेगान, वेगान क्या है? वह वेग हम देखेंगे, देर आर 2-3 एग्जाम्पल उसके लेंगे हम लोग. और फिर वाच वेगम, वाच वेगम मतलब क्या? अर्ज टू स्पीक, वाचा बोलने का अर्ज जो है. मनसा, अर्ज ऑफ माइंड, मन का वेग. क्रोध वेगम, गुस्सा, एंगर. जिह्वा वेगम, टंग, जिह्वा का. उदर उपस्थ वेगम, उदर मतलब स्टमक, और उपस्थ मतलब सेक्स ऑर्गन्स, उसका वेगम. शिष्यात कुछ अलग है यहाँ पे देखो, कैन पोटेंशियली इंस्ट्रक्ट, मतलब वो दूसरों को शिक्षा, गाइडेंस दे सकता है. हाँ. इमम दिस सर्वाम एंटायर पृथ्वी. ओके, तो ये हमने इसका पढ़ा ट्रांसलेशन. जैसे मैं बोला था इस क्वालिफाइड, है ना? वो क्वालिफाइड मतलब क्या है? वो मतलब इंस्ट्रक्ट कर सकता है, अभी देखेंगे. तो शिष्यात जो शब्द है इसमें खास करके, शिष्यात मतलब, नहीं शिष्यात, हाँ शिष्यात करेक्ट. पर शिष्यात का 4 लेवल का मीनिंग बोला गया है, तो हम देखेंगे हमारे लिए क्या एप्लीकेबल है. तो शिष्यात का पहला है मतलब इट्स लाइक इंस्ट्रक्शन. शिष्यात कैन ऑल्सो मीन इंस्ट्रक्शन. शिष्यात कैन ऑल्सो मीन प्रेयर, इट इज अ प्रेयर. इट कैन ऑल्सो मीन आशीर्लिंगा, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को. और कामाचर. तो इंस्ट्रक्शन मतलब क्या? कोई पढ़ेगा इसको जोर से? ठीक, इसका लिखने का टेंशन मत लो, ये सारा चीज आपको मिल जाएगा, है ना? इसको लिखने का टेंशन, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट्स नोट कर लो आप, बट पूरा लिखते मत बैठो, उसमें टाइम ज्यादा जाएगा. और हम फिर तो हम आपको मैं आपको यही दे तो आप फिर से आप सीख जाएंगे, नहीं तो मेरा आवश्यकता नहीं पड़ेगा आप लोगों को. ठीक, शायद वो आवाज कर रहा है ना, मैं इसमें पढ़ लेता हूँ. इंस्ट्रक्शन, इट्स अ विधि लिंग, कैन डिस्क्राइब द मूड ऑफ कंपल्सरी इंस्ट्रक्शन. विधि मतलब बोलते हैं ना, वैधि साधना भक्ति, मतलब रूल्स रेगुलेशन वाला, समथिंग इज कंपल्सरी, करना ही है. तो विधि लिंग मतलब क्या है? इसका मतलब कि ये शिष्या जो शब्द है, इट कैन बी लाइक अ इंस्ट्रक्शन, कि तुमको करना ही है, मतलब क्या? तुमको शिष्य बनाने ही है. इंस्ट्रक्शन, समझ रहे ना? तो इट कैन डिस्क्राइब द मूड ऑफ कंपल्सरी इंस्ट्रक्शन. दिस वुड मीन मस्ट इंस्ट्रक्ट, बट द मीनिंग वुड नॉट मेक सेंस. क्यों? देखो, अगर अभी हम क्या देख रहे हैं, शिष्या जो शब्द है उसका 4 लेवल का मीनिंग देखने का प्रयास कर रहे हैं, और हमारे लिए क्या मीनिंग एप्लीकेबल है वो देख रहे हैं हम लोग. तो ये सेम शब्द का 4 मीनिंग हो सकता है, जो 4 मेन पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं उसमें का पहले देख रहे हैं. कि अगर कोई बोल सकता है शिष्यत मतलब क्या, इट्स लाइक इंस्ट्रक्शन, कंपल्सरी है क्या? तुमको डिसेबल बनाना ही है. यस, वे टारगेटिंग फॉर अस. यस, मतलब मैं शिष्य बनाऊंगा, बिकॉज वाचो ये किसके लिए दिया गया? सी रूप गोस्वामी गेव टू जीव गोस्वामी, बट इन द प्रोसेस ऑफ जीव गोस्वामी वी आर वन सेंस recipients now of this shloka. So when you're talking about Shishyat, it's like a Jiva Goswami offering that initiation, or in the same line, we offering that initiation. We becoming gurus basically. तो कोई बोलेगा शिष्यात शब्द मतलब इट्स कंपलसरी, मतलब कंपलसरी है, तुमको शिष्य बनाना ही पड़ेगा. उसका अगर एक मीनिंग हमने ये लिया, ये 4 मीनिंग का चर्चा करें हम, इसका शिष्यात एक वर्ड का 4 मीनिंग हो सकता है. पहला मीनिंग हम देख रहे हैं, अभी इसमें से क्या होगा ना, 4 में से 3 मीनिंग हमको कैंसिल करने पड़ेंगे,
और जो एक्चुअल मीनिंग है उसको हम लेंगे। समझ गए? क्लियर अभी? तो पहला हम क्या देख रहे हैं, उसका एक मीनिंग क्या हो सकता है शिष्यात का? इंस्ट्रक्शन मतलब आपको शिष्य बनाना ही है, कंपलसरी है। नॉट एवरीवन इज ओपन टू इंस्ट्रक्शन, ये भी तो होता है। काफी बार आप देखिएगा ना, स्पिरिचुअल मास्टर सभी को इंस्ट्रक्शन नहीं देते। क्यों नहीं देते? कोई लोग जाते हैं ना कि गुरु महाराज मुझे आप कुछ पर्सनल इंस्ट्रक्शन दीजिए प्लीज, कोई लोग जाते हैं ऐसे, मैं देखे सेवा में देखता हूं मैं काफी बार। तो गुरु महाराज क्या बोलते जनरली, अलग अलग गुरु महाराज क्या बोलते हैं? इनर लेक्चर बोलेंगे, है ना, और क्या बोलेंगे? ठीक है, चैंटिंग अच्छे से करो, ये सब बोलेंगे। पर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन क्यों नहीं देंगे? क्योंकि काफी बार उनको भरोसा नहीं होता ये फॉलो करेगा नहीं करेगा। अगर ये फॉलो नहीं करेगा तो गुरु अपराध करेगा, इसलिए इंस्ट्रक्शन देते ही नहीं। इसलिए अगर ये श्लोक में अगर शिष्यात का मतलब इंस्ट्रक्शन होता तो हम कोई इसको फॉलो कर ही नहीं सकते थे, कि हमसे वाचो वेगम होता नहीं, काफी बार क्रोध वेगम नहीं होता है हमसे। इसीलिए शिष्यात का मतलब इट्स नॉट अ कंपलसरी इंस्ट्रक्शन, तो पहला मीनिंग हम उसको कैंसिल कर रहे हैं अभी। सब लोग मेरे साथ में है? पहला मीनिंग हम कैंसिल, इट्स नॉट इंस्ट्रक्शन। फिर वो दूसरा क्या बोल रहे हैं, प्रेयर। तो क्या एक गुरु अपने शिष्य को प्रार्थना कर सकता है कि मेरे प्रिय शिष्य कृपा करके आप ये करो? कि गुरु का काम है इंस्ट्रक्ट करना। सो गुरु विल नॉट ऑफर अ प्रेयर टू हिज पोटेंशियल डिसाइपल। डिसाइपल बना भी नहीं है अभी तक, है ना। आगे जाके हम देखेंगे पॉइंट कि गुरु का एक पार्ट होता है कि गुरु किसको करेक्शन देता है। हाँ, नहीं, जिस व्यक्ति को सी टू हुम गुरु कैन करेक्ट, वैसे हु गुरु किसको करेक्ट करना चाहिए, गुरु ने किसको करेक्ट करना चाहिए इन शॉर्ट? whoever is following his instruction. So you can't kind of correct someone who is not your disciple basically, in short प्रभुपाद बोलेंगे आगे एक जगह, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे हम क्यों चर्चा कर रहे हैं कि भाई ये जो शिष्यात है इट्स नॉट अ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। इट्स नॉट प्रेयर, मतलब गुरु नहीं बोला ठीक है यार तुम थोड़ा मैं आपसे प्रार्थना करो तो ऐसा कर लो ना, वो भी नहीं है, कि मूड के साथ नहीं जा रहा है वो। नंबर 3, आशीर्लिंग का मतलब क्या, कि गुरु बोल रहा है ठीक है, आई ब्लेस हिम हु कंट्रोल द अर्थ टू इंस्ट्रक्ट द अर्थ। मैं आशीर्वाद देता हूं, जो व्यक्ति करेगा ना उसको ऐसा होगा, मैं आशीर्वाद देता हूं। ऐसा गुरु गुरु ऐसा बोल नहीं रहे। थर्ड चीज भी क्यों, ये थर्ड मीनिंग क्यों अप्लाई नहीं हो रहा है, मतलब गुरु आशीर्वाद नहीं दे रहे जब ये बोल रहे, ये जब इंस्ट्रक्शन दे रहे वो आशीर्वाद नहीं दे रहे। क्यों नहीं आशीर्वाद दे रहे? क्योंकि जब फॉलो होगा नहीं तो लोग क्या बोलेंगे, अरे गुरु का आशीर्वाद काम नहीं करता, तो गुरु पे ब्लेमिश आ जाएगा। इसलिए इट्स नॉट अ आशीर्लिंग इन शॉर्ट। नंबर 4, कामाचार। तो गुरु क्या कर रहे हैं पे, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। when a requester do something and whether they do it or not is up to the individual। मतलब वो उसका क्या होगा, वो इंडिविजुअल चॉइस है उसका कि फॉलो करे कि ना करे। क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो सारे श्लोक में व्हाट वी आर गेटिंग टू सी, सो गुरु इज नाइदर इंस्ट्रक्टिंग हियर, he is neither praying to him or requesting him, neither he is blessing him, if you do this you get this, but he is kind of he's requesting भाई ठीक है you try to follow। तो उससे क्या होगा, वैसा बोलने से क्या होगा, उसको फॉलो करने के लिए थोड़ा सा ठीक है मैं मेरे लेवल से फॉलो करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, वाचो वेगम बोल रहे हैं, बट वाचो वेगम में एब्सोल्युटली फॉलो करना है। ठीक है, मैं अभी पाऊंगा 100% फॉलो नहीं कर पा रहा हूं मैं, ठीक है मैं 50% फॉलो करने का प्रयास करो। तो शिष्य को क्या होगा ना, वो डिप्रेस नहीं होगा। You getting what I'm saying? वो अपने लेवल से अपने यथाशक्ति उसको फॉलो करने का प्रयास करेगा। कौन? ये समझ रहे हैं आपको, ऑनेस्टली बोलो, ऐसा नहीं कि भाई मैं हाँ हाँ करूं। क्लियर हो रहा है? अभी एक तरह से देखा जाए तो रूप गोस्वामी जी जो है ना,
So Rup Goswami is giving us an open invitation. क्या इनविटेशन दे रहे हैं? ठीक है, मुझे एक चीज बोलो आप, जब कोई गुरु बनता है, सो व्हाट आर द बेनिफिट्स गुरु रिसीव्स? क्या बेनिफिट्स आते हैं गुरु के पास? हाँ, ही हैज मेनी डिसाइपल, भाई ये मेरे फॉलोअर्स है, ही सेज समथिंग दैट विल डू इट। ठीक है, और क्या मिलता है गुरु को? क्या मिल सकता है? दक्षिणा, मनी। व्हाट इज गुरु कैन गेट? राजभोग प्लेट आता है उनके लिए, महाप्रसाद, महाराज आप आए, पूरा राजभोग का प्लेट आपके लिए। और क्या मिल सकता है एक गुरु को? तो ही में फील ओके, ठीक है, आई हैव सो मेनी फॉलोअर्स, मेरे 10,000 डिसाइपल्स है, दैट नेम फेम उसमें आ सकता है। और रिसोर्सेस, सर्वेंट्स, फॉलोअर्स, एक अच्छा सन्यासी रूम मिलता है उनको, फिर हाई क्लास रूम मिलता है। तो अगर ये सब बेनिफिट वो व्यक्ति को मिलता है, तो फिर यहाँ पे रूप गोस्वामी क्यों बोल रहे हैं आपको कि भाई तुम गुरु बनो? नहीं नहीं। सो रूप गोस्वामी नॉट टॉकिंग फॉर, इट्स लाइक अ हिडन, मैं बोला कि इट्स लाइक अ हिडन मैसेज। क्या है इसमें रूप गोस्वामी का? कि उनको पता है कि हम सब में कुछ तो डिजायर है, नेम फेम प्रेस्टीज का डिजायर है हम सब में। तो व्हाट ही इज फीलिंग कि ठीक है, मैं उसको क्या कर रहा हूं अभी, देखो भाई, तुम अगर वाचो वेगम करोगे, मनसा क्रोध वेगम करोगे, जीवा उधर उपस्थ वेगम करोगे, तो फिर तुम क्वालिफाई बनोगे डिसाइल बनाने के लिए। तो सोचे कि यार गुरु बनने के बाद इतना बेनिफिट मिलता है, तो ठीक है मैं प्रयास तो करता हूँ क्या करने का, वाचो वेगम करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। पर प्रोसेस में क्या हो रहा है? प्यूरिफाई हो रहा है वो। मतलब ही इज यूजिंग अवर लोअर नेचर टू शो अस अ कैरेट, और फिर बाद में वो कैरेट का हलवा बना के भगवान को ऑफर कर दे रहे रूप गोस्वामी, है ना? या फिर हम ही उसको ऑफर कर देंगे भगवान को। सो बेसिकली व्हाट्स हैपनिंग हियर इज रूप गोस्वामी is helping us to using our lower tendency for name, fame, prestige, and all those things to come closer on the path of devotional service. देखो, हम सबको फेमस बनने की सबको इच्छा है, सबको लगता है भाई मेरे इंस्टाग्राम के बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, है ना, मेरे बहुत सारे, मतलब मुझे डिटेल पता नहीं, बट जो भी है सारा, मेरे को फॉलोइंग चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, सब कुछ चाहिए। बट यार व्हाट्स हैपनिंग इज कि बिकॉज ही अंडरस्टैंड्स, हम बोलते हैं कंपनी में इंसेंटिव होता है। इंसेंटिव कंपनी, पता होगा आपको क्या होता है इंसेंटिव? हाँ, पर भी इनको पता है हमारा परफॉर्मेंस क्या है, हम परफॉर्म ही कर नहीं पाएंगे, इसलिए हमको रूप गोस्वामी पहले इंसेंटिव दे रहे हैं। ठीक है, तुमको गुरु बनना है, तुमको चलो आ जाओ, ये सब चीज करो तो बन जाओगे। पर मैं ऐसा बोलने का प्रयास कर रहा हूँ कि जब प्रोसेस में क्या होगा, यू गेट प्यूरिफाइड, आपका वाचो वेगम हो जाएगा, मनसा क्रोध वेगम, ये सब आपका कंट्रोल हो जाएगा प्रोसेस में। दैट्स वाई दैट इज एक्चुअली हिडन मर्सी ऑफ रूपा गोस्वामी ऑन ऑल ऑफ अस। हम्म। आई जस्ट एक मिनट, अभी उसको एक मिनट आप सुनो तो आपको सारा क्लियर होगा। रूप गोस्वामी इज गिविंग एन ओपन इन्विटेशन, ही हैज समथिंग ऑन हिज माइंड behind mentioning this Shishat. Rup Goswami is very broad-minded. He has kept no boundaries on this verse. उन्होंने कुछ बॉर्डर नहीं किया, ठीक है, कि भाई he did not say that only चैतन्य महापुरुष followers will receive this, ये लिखा है। फिर और he did not say that only चैतन्य महापुरुष followers may instruct the earth if they control these 6 surges, not restricted to संप्रदाय और an institution, रिस्ट्रिक्ट नहीं किया उस सब चीज को। Rupa Goswami is truly an open minded Brahmana. What is hidden here? Sometime for newcomers on the path of bhakti,
they see how much respect senior devotees get. देखा हो ना आपने? फिर आपने हम लोग को ही देखा होगा, कौस्तुभ को, मुझे कभी कोई प्रोग्राम है तो माला पहना दिया, कुछ गिफ्ट दे दिया, कुछ दक्षिणा दे दिया, आपको लगता है यार देखो प्रभु जी को इतना मिल रहा है। भाई हमसे थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो प्रेसिडेंट आ गए, सपोज क्या क्या टीएमसी आ गए, है ना, उनको एक लेवल का मिलता है, ऑनर रिस्पेक्ट वो सब मिलता है। और ऊपर जाइए, गुरु जी या फिर कोई सन्यासी है, उनको एक बड़े लेवल का मिलता है ना। हमको सपोज 501 रुपये मिलता होगा, वो गुरु जी को 50,001 रुपये मिलता होगा, है ना। फर्क है दोनों में, करेक्ट ना। तो हम न्यूओफाइट स्टेज में क्या लगता है हमको, अरे इनको क्या क्या बेनिफिट मिल रहा है, तो ये इधर चर्चा हो रहा है। समटाइम्स फॉर न्यू कमर्स ऑन द पाथ ऑफ भक्ति दे सी हाउ मच रिस्पेक्ट सीनियर ड्यूटीज रिसीव, तो हियर इज एन इंसेंटिव। तो व्हाट इज एन इंसेंटिव हियर, क्या हो गया, मैं चेंज नहीं किया, वही है, सेम है, चेंज नहीं किया मैंने। मतलब मैं हियर इज एन इंसेंटिव, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि ये श्लोक में, स्लाइड में नहीं। सो हियर इज ए इंसेंटिव, मतलब हमको क्या दिखा रहे रूप गोस्वामी, ठीक है आपको, मतलब उन्होंने देखा हम सब में नियोफाइट टेंडेंसी है, हमको फेमस बनना है, हमको कुछ फॉलोअर्स चाहिए, तो क्या बोले ठीक है तुमको है ना, तो भी मैं आपको इंसेंटिव देता है कि बेनिफिट देना चाहता हूँ क्या, दैट यू कैन ऑल्सो गेट सच रिस्पेक्ट, आपको रिस्पेक्ट मिलेगा। बट क्या करने से मिलेगा आपको रिस्पेक्ट है, आप अर्जेस को कंट्रोल करो, जस्ट कंट्रोल अर्जेस, देन यू कैन गेट द सेम रिस्पेक्ट व्हाट सीनियर ड्यूटीज आर गेटिंग। और उसमें क्या हो रहा है, बेसिकली क्या हो रहा है ना, रूप गोस्वामी को सब कुछ चीटिंग कर रहे हैं हमारे साथ एक लेवल पे। चीटिंग के मतलब इसलिए वेरी पॉजिटिव चीटिंग, कि हमको बता हाँ तुमको तुमको ये सब मिलेगा, बस ये सब कर लो। हमको लगता है हाँ हाँ, हम उसके पीछे पीछे जाते हैं, पर प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे ना कोई चूहा को देखता है कितना अच्छा खाने को है, पूरा अटक जाता है जाले में। वैसे हमारे केस में हाउ वी कैन ट्रांसलेट दिस एग्जाम्पल, कि वी ऑल्सो वॉन्ट टू बिकम समथिंग, वी मे गो बिहाइंड दैट फॉलोइंग दिस प्रोसेस, when the process what happens, we give up all the negativities, it's called transcendental cheating, है ना, ट्रांसडेंटल चीट कर रहे हैं हमको रूप गोस्वामी यहाँ पे। तो आगे सुनो, बाय द टाइम वन मैनेजेस टू कॉन्कर द 6 urges, by the time one manages to conquer the 6 urges, one will have no more desire to have desire for his own sense gratification। आप करते करते जा रहे मेरे को गुरु बनना है, गुरु बनना है, गुरु बनना है, ये फॉलो करते करते गुरु बनना है, लेकिन प्रोसेस में क्या हो गया, आपने सारा छोड़ ही दिया, है ना। A guru gets many benefits from disciples like money, food, place to live, worship। जैसे अभी रिसेंटली इंद्रदुम्न महाराज आए थे, गिरिराज महाराज आए थे, तो क्या लेवल ऑफ वर्शिप है देखो, मतलब उनका चरण बेदिंग हुआ, उनका गार्लैंड ऑफर हुआ, फिर उनका आरती हुआ पूरा। हमारा आइडिया है सिर्फ प्रोपद तक आरती हमको थोड़ा सा परसीव लगता है, बट किसी व्यक्ति के, ठीक है व्यास पूजा में ठीक है, बट किसी व्यक्ति को इस तरह का रिस्पेक्ट मिलना, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि उनको इतना रिस्पेक्ट मिलता है। तो वी मे गेट अ डिजायर आ रही है, अच्छा उनको इतना रिस्पेक्ट मिल रहा है, तो लेट मी बिकम, पर मुझे गुरु बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, वाचो वेगम करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ठीक है मैं कर लूंगा। इस पे क्या हो रहा है, फायदा ज्यादा बड़ा लग रहा है हमको, गुरु बनने से बेनिफिट बहुत ज्यादा है मेरे को, पर ये ठीक है वाचो वेगम कर लूंगा, थोड़ा सा कम बोलूंगा मैं, कमेंट पास नहीं करूंगा, क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, बट प्रोसेस में क्या हो रहा है, हम लोग खुद प्यूरिफाई हो रहे हैं। सो दे हैव फ्रीडम टू एक्ट, तो दे कैन डिसाइड कहाँ जाना है, चलो मेरे को मायापुर जाना है, मुझे वृंदावन जाना है, तो परमिशन थोड़ी लेना पड़ता है किसी का, खुद से जा सकते हैं ना। तो दे हैव फ्रीडम टू एक्ट, सो ईच ऑफ दीज कैन पोटेंशियली डेविएट वन फ्रॉम द पोजीशन ऑफ कंट्रोलिंग द 6 urges। हालांकि उनकी इतना सारी चीज मैंने बोला है, पर इस 6 में से आप देखेंगे ना, एक व्यक्ति को डेविएट कर सकता है, बहुत ज्यादा बोलना, वाचा पे वेगम नहीं करना तो डेविएट हो जाएगा, और उसका जीवा पे वेग नहीं है तो फिर डेविएट हो सकता है। तो इसलिए कहा रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि वी शुड वन हु डज नॉट वांट टू अनसेटल वन सेल्फ आफ्टर अ लॉट ऑफ एफर्ट। तो इसीलिए रूप गोस्वामी हियर इज रिक्वेस्टिंग अस, मतलब मैं अपने बोलने का काम करो, इट्स अप टू यू और अप टू अस, फॉलो करो नहीं करो। कैसा होता है ना, बोलते हैं ठीक है आप फॉलो करो आपको ये मिलेगा, फॉलो नहीं करो तो नहीं मिलेगा। नेचुरली व्यक्ति क्या सोचेगा साइकोलॉजिकली, ठीक है फॉलो करके तो देखता हूँ, एटलीस्ट कुछ तो मिलेगा मुझे, गेटिंग। तो रूप गोस्वामी, व्हाट इज द हिडन इंटेंशन ऑफ रूप गोस्वामी,
देखो ये एक आता है, भागवतम में भी आता है, और 11th लिम ऑफ साधना भक्ति, भक्ति रसाम सिंधु में भी आता है। न शिष्यान अनुबंधनीत, वन मस्ट नॉट कलेक्ट मेनी डिसाइपल्स। पर अभी तो बोल रहे डिसाइपल, वही रूप गोस्वामी अपना ही टीचिंग को क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एक तरह से लगता है कि कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं ना, कर रहे क्या, क्यों नहीं कर रहे? और इंटरेस्टिंग देखेंगे ना, उन्होंने ये नहीं कहा कि कितने डिसेबल बनाना है आपको, 1 2 3 4 5 6 10 हजार 10 हजार 50 हजार 1 लाख, वो नहीं बोला उन्होंने। क्या बोल रहे हैं? डू नॉट मेक मेनी डिसाइपल्स। मेनी मतलब क्या, 2 भी मेनी होता है ना, 3 भी मेनी होता है, और 1000 भी मेनी होता है, और 10,000 भी मेनी होता है ना। तो मेनी मतलब क्या, इट्स अ रिलेटिव टर्म। उन्होंने मैं बोला ना कि वो क्या करे, आप डिसाइड करो, वो इसलिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये मैं आपको प्रिंसिपल बोल रहा हूँ ना, यू डिसाइड व्हाट टू डू अबाउट इट। ना किसी व्यक्ति के लिए मैनी होगा 2, से हम वी हैव एग्जांपल ऑफ जयदत्त महाराज, फॉर हिम मैनी इज 10, बट वी हैव एग्जांपल ऑफ जयपताका महाराज आल्सो 50-60,000 disciples. So many is a relative term, है ना। So let's go ahead, पढ़िए। माइक बज रहा है ना, बजेगा, ट्राई करो एक बार, नहीं तो फिर छोड़ दो। हरे कृष्ण। ऑन यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ पढ़ो पढ़ो। Not accepting unfit disciples. Nectar of Devotion heading. Sometimes a spiritual master takes the risk of being overwhelmed by the sinful reactions of the disciples and undergoes a sort of tribulation due to their acceptance. Sri Chaitanya Mahaprabhu therefore advised that one not accept many disciples. Srimad Bhagavatam 4.21 Yes. 31 purport. तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ वैदिक स्क्रिप्चर्स, दे नेवर टेल यू क्या ऐसा करो, ऐसा मत करो। सी वी हैव समथिंग कॉल्ड एज एब्राहमिक रिलीजन्स एंड वी आर नॉन एब्राहमिक रिलीजन्स। व्हाट इज एब्राहमिक रिलीजन्स मींस? Jews, Muslims, Christians, they come in that category. नॉन एब्राहमिक मतलब जितना भी वैदिक और वैदिक रिलीजन्स या फिर उसके ऑफशूट्स भी इसमें आते हैं सारे। So the beauty of the beauty of non-Abrahamic religions is what? They always offer choices to followers. उसमें ऐसा नहीं होता कि भाई आपको ये ही करना है, ये एक ही चीज है, ये एक ही बुक है, ये एक ही भगवान है, ये एक ही चीज है, ऐसा कहीं पे भी नहीं मिलेगा आपको नॉन एब्राहमिक में या फिर वैदिक ट्रेडिशन में। सबको अपने लेवल, जैसे आज महाशिवरात्रि है ना, तो सम पीपल दे वर्शिप शिवा, दे वर्शिप शिवा सुप्रीम, सम वर्शिप विष्णु सुप्रीम, कोई गणेश को सुप्रीम मानते हैं। तो ये किसके बेसिस पे? उनका फेथ के लेवल पे। कृष्ण से गीता, डोंट डिस्टर्ब समवंस फेथ इन डेमिगॉड्स। मतलब कोई डेमिगॉड वर्शिप कर रहा है तो एटलीस्ट उसका वैदिक ट्रेडिशन में फेथ है, उसको धीरे धीरे करके देन ही में चेंज, है ना। तो इसीलिए ब्यूटी क्या है कि व्यक्ति के लेवल के हिसाब से उसको दिया गया है। सो इफ योर लेवल इज दिस, यू गेट दिस लेवल ऑफ practices, this level of worship you can do. But if your level is topmost, then you can worship Krishna as Supreme Lord. And even Krishna Gita में देखेंगे ना, many places he says, if you can't do this, do this. If you can't do this, do this. At least you should do this. मतलब इसके नीचे मत जाओ, कृष्णा बोलते हैं। मतलब क्या है? Then when person has choice, then he can adjust himself according to his level and gradually advance. You getting? मैं आपको समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना। तो हालांकि इट्स नॉट कॉन्ट्राडिक्टरी, जैसे मैंने बोला। तो मैंने बोला कि सिमिलरली व्हेन ही टॉक्स अबाउट मेनी, इट्स लाइक वेरी रिलेटिव टर्म। फॉर समवन 2 कैन बी मेनी, फॉर समवन 60,000 कैन आल्सो बी लाइक नॉर्मल, है ना। सो इट्स लाइक द स्क्रिप्चर्स आर गिविंग, सो वैदिक कल्चर अलाउ पीपल टू मेक कॉन्शियस डिसीजन फॉर देमसेल्फ। दे कैन डिसाइड कि भाई मैं
कितने लोगों को मैं आश्रय दे सकता हूं, है ना? लाइक they can decide they can give a shelter to 2 devotees, 5 devotees, 10 devotees, or they can give shelter to thousands of devotees. That they have to make a conscious choice. Conscious choice मतलब क्या? मैं खुद उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूं मेरे डिसीजन का। स्क्रिप्चर्स क्या बोल रहे हैं एक लेवल पे? डू नॉट कलेक्ट मेनी डिसाइपल्स, है ना? या फिर डू नॉट एक्सेप्ट मेनी डिसाइपल्स, नॉट एक्सेप्टिंग अनफिट डिसाइपल्स। ये सब कहाँ गया स्क्रिप्चर्स में? पर फिर व्यक्ति कॉन्शियस चॉइस कर रहा है अभी कि ठीक है, अभी मैं आई एम कॉन्शियसली चूजिंग कितना मैं डिसाइपल्स को शेल्टर दूंगा बेस्ड ऑन माई लेवल, है ना? इस क्लियर? शिष्यात क्लियर हो गया अभी? शिष्यात के यहाँ पे मीनिंग क्या है? इट्स अ रिक्वेस्ट बेसिकली। जैसे यहीं पे हम ये भी देखा कि कैसे मेनी मतलब क्या? इट्स अ ऑप्शन गिवन टू द इंडिविजुअल पर्सन, कितना। नाउ व्हेन वी डिस्कस आउट वेग, जो हमारा अभी देखो हम जनरल डिस्कस कर रहे हैं, हम अभी वाचो वेगम की तरफ गए नहीं है। इन जनरल वेग मतलब क्या? तो देर आर 3 मीनिंग्स टोल्ड अबाउट इट। वेग कैन बी अ फ्लो, है ना? जैसे जल वेग, नदी होती है हमारी, नदी एक वेग से चलती है, फ्लो ऑफ वाटर। स्विफ्टनेस, वायु वेग, वायु जब चलता है तो वायु वेग या फिर जल वेग, ये किसके लिए कहा गया है? ये सब एक तरह से देखा है तो ये क्या है? नॉन लिविंग एंटिटीज है, दे आर नॉट लिविंग। मतलब वायु हो गया आपका, जल हो गया, करेक्ट। पर वेग का और एक मीनिंग है जो तीसरा पे लिखा है लिस्ट में, अर्ज। अर्ज मतलब क्या? अर्ज फॉर लिविंग एंटिटीज, वेग इज ओनली एप्लीकेबल टू लिविंग बींग्स। जो वेग है फिर अर्ज है, जो तीसरा मीनिंग है इसका, ये सिर्फ जिंदा लोगों के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति मर गया है अभी, समझ डेड बॉडी, तो क्या वो व्यक्ति को वेग आएगा? क्यों नहीं आएगा? भले ही हो सकता है कि वो व्यक्ति हम बोले ठीक है वो एक समय लिविंग था। सी वाटर इज नेवर लिविंग, विंड इज नेवर लिविंग इन द सेंस ऑफ आत्मा, वो कंटेक्स में। पर कोई व्यक्ति से हम है, इफ समवन इज सम ह्यूमन हैज डाइड फॉर एग्जांपल, हम ठीक है वन पॉइंट ऑफ टाइम ही वाज अलाइव, बट नाउ बिकॉज वॉट एवर ही हैज डेड, तो वेग तो उसमें आएगा नहीं, बट इज ऑल्सो नॉट क्वालिफाइड टू instruct the people on the earth. Getting what I'm saying? क्या देखो, जब हम ये फ्लो है, स्विफ्टनेस है, ये तो हमने नॉन नॉन लिविंग एंटिटीज के लिए कहा कह दिया। अर्ज, वेग जो है, अर्ज जिसको कहा है, उसको मीनिंग इज फॉर लिविंग एंटिटीज। नाउ व्हेन समवन वाज वन पॉइंट ऑफ टाइम लिविंग, पहले जिंदा था अभी मर गया, तो क्या उसको वेग आएगा? तो बेसिकली क्या वो डिसेबल बना सकता है? मरा हुआ आदमी किसी को डिसेबल बना सकता है क्या? तो फिर क्या है इसमें इतना कॉम्प्लिकेटेड? समझ गया ना? हाँ या ना? उसको वेग आएगा ही नहीं ना, वो बोल ही नहीं पाएगा। वो कुछ ऐसा ऐसा आपने कुछ गाजर का हलवा लेके आए तो ऐसा नहीं कि वो उसका जीवा बेगम होगा उसके लिए, है ना? तो शिष्य कैसे बनाएगा फिर? तो मतलब आगे अगर पहला ही एप्लीकेशन माइनस है तो आगे कैसे होगा फॉलो? जिवा बेगम वो सब उसमें है ही नहीं, बिकॉज उसमें ही इज नॉट लिविंग। अब ये अब मरा हुआ व्यक्ति है। तो बेसिकली हमारे शरीर में 2 प्रकार के वेग अर्जेस होते हैं, है ना? ये हाँ, हाँ, क्या नहीं कर सकत? हाँ, इंस्ट्रक्ट नहीं कर सकत ना तो। हाउ वी सी दैट? सी ये जो हम जो डिस्कस कर रहे हैं, हाँ,
हाँ करेक्ट, मैं उस चीज को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहा हूँ, पर जब ये हम चर्चा कर रहे हैं ये जनरल सेंस में कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ महाभागवत शुद्ध भक्त स्पिरिचुअल मास्टर। नहीं, अल्टीमेटली शिष्य बनाना, सी मैं वही बोल रहा, थोड़ी देर पहले मुझे एक्सप्लेन किया, तो शिष्य बनाना इज मोर ऑफ अ इंसेंटिव गिवन टू ऑल ऑफ अस, इट डजंट मीन दैट ही हैज बिकम प्योर ड्यूटी। क्योंकि देखो इसके बाद बाकी भी स्टेप्स है ना, अभी तो होली नेम आया नहीं है पिक्चर में। हाँ हाँ हाँ, तो अगर इंस्ट्रक्ट आपने भक्ति सिद्धांत ठाकुर का एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है, बट हु इज ही लाइक उनका डेड बॉडी इज लाइक नॉर्मल बॉडी इज लाइक ऑल ऑफ अस? फर्क है ना, उनके डेड बॉडी में और नॉर्मल व्यक्ति के डेड बॉडी में फर्क है ना। हाँ, तो आपको क्या लग रहा है बोलो? हाँ, ये आपका करंटली जो चल रहा है ना साधना स्तर चल रहा है, इसलिए मैंने बोला फर्स्ट 7 श्लोका टॉक्स अबाउट साधना, साधना भक्ति। तो ये जब कोई व्यक्ति, जैसे मैं बोलने का प्रयास कर रहा हूँ कि जब कोई व्यक्ति गुरु बन रहा है यहाँ पे, तो गुरु को आप ये हमेशा ये मत कंपेयर कीजिए कि ही लाइक अ शुद्ध मतलब महाभागवत जिसने प्रेम प्राप्त कर लिया ऐसा व्यक्ति। जो आप एग्जाम्पल दे रहे हैं, हालांकि ये कैटेगरी के आप एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे आपने भक्ति सिद्धांत ठाकुर का एग्जाम्पल दिया या फिर बाकी भक्ति मार्ग से बुक से एग्जाम्पल दिया, तो दे आर ऑल लाइक उन्होंने सारा प्रेम प्राप्त कर लिया ऐसे व्यक्तित्व है। और अभी यहाँ पे हम लोग बस रूप गोस्वामी हमको बस एक गाजर दिखा रहे कि ठीक है तुम गुरु बन जाओ, तो वो वाले लेवल पे हम डिस्कस कर रहे हैं, अभी साधक के लेवल पे डिस्कस कर रहे हैं। तो जब साधक यही व्यक्ति आगे चल के जब सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ आगे तक फॉलो करते जाएगा, देन ही बिकम्स अ महाभागवत, और देन ही कैन कम बैक एंड इंस्ट्रक्ट। वही बोल रहे हैं आप? नहीं हाँ मत बोलो, अगर आपको सेटिस्फाई नहीं तो और पूछो, टेंशन मत लो। ठीक है, तो आयुर्वेदिक के हिसाब से वैसे ऑल ऑफ अस वी हैव 2 टाइप्स ऑफ वेगस। एक जिसको हम धारण कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, और कुछ ऐसे वेग होते हैं जिसको हम होल्ड नहीं कर सकते। क्या ऐसे वेग होते हैं जिसको हम होल्ड नहीं कर सकते? हाँ, या फिर मैं ऐसा बोलना चाहूंगा कि कुछ ऐसे वेग होते हैं जिसको होल्ड करना चाहिए और कुछ वेगों को होल्ड नहीं करना चाहिए। क्या? जैसे वॉशरूम जाना है हमको, तो उसको हमको होल्ड नहीं करना चाहिए, है ना। इसको अगर क्लियरिंग जाना है तो उसको होल्ड नहीं करना चाहिए, इसका मतलब नहीं वहीं पे करना चाहिए, बट अप्रोप्रिएट मेथड में काम करके करना चाहिए। तो धारणीय जो होते हैं, इसका मतलब क्या है, जिसको हम जिस पे हम कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब क्या क्या है इसमें? हमारा मन से या फिर हमारा स्पीच से जो भी चीज आता है और हमारे मन से, ये चीजों पे आप होल्ड कर सकते हैं अपने खुद के डिटर्मिनेशन के बेसिस पे। पर उसी के साथ जो अधारणीय होते हैं, विच आर नॉट टू बी कंट्रोल्ड, जैसे एग्जांपल है कि समवन वांट्स टू पास यूरिन, स्नीजिंग, स्नीजिंग मुझे शिंका येणे, है ना, उसको होल्ड नहीं करना चाहिए। फिर टू डिस्कार्ड वेस्ट, कफिंग। बट इफ यू समवन में से ओके आई विल होल्ड दिस वेगास, अधारणीय वेगा को और मैं धारण करने का प्रयास करूंगा, तो उसका इफेक्ट क्या होता है? देन यू गेट डिसीज्ड। जैसे कोई व्यक्ति अगर वॉशरूम जाना है लेकिन बिकॉज ऑफ सम रीजन ही डजंट गो, जैसे कोई डीटी में होता है काफी बार, चलो मैं डीटी का सेवा कर रहा हूँ, फिर मुझे वॉशरूम का अर्ज आ गया और आई विल होल्ड इट, तो देखिए डिसीज, लाइक किसी को किडनी स्टोन हो जाता है फॉर एग्जाम्पल। क्यों हो गया किडनी स्टोन? बिकॉज वॉशरूम टाइम नहीं गए, पानी पिया नहीं समय के समय, क्योंकि आचमन करना पड़ेगा बार बार, वो गमछे पे आके सब करना पड़ेगा इसलिए। तो when they become, when the adharanya you do, you kind of try to hold them, then you get a disease. But reverse is not true, huh? मतलब जो धारणीय है, जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, उसको अधारणीय नहीं करना चाहिए, उसको अनकंट्रोलेबल नहीं करना चाहिए। जिसको कंट्रोल कर सकते हो उसको कंट्रोल करो, जिसको नहीं कर सकते उसको
मत करो, इन शॉर्ट. So when dharaniya urges are controlled, they eliminate disturbance in bhakti. नहीं, ते माझे पॉइंट्स आहेत. समझ क्या बोल रहा हूं मैं? When धारणीय urges are controlled, they eliminate disturbance in bhakti. मतलब क्या? इसका एग्जांपल कोई देगा? जैसे वाचो वेगम है, तो उसको अगर वाचो वेगम को कंट्रोल करोगे तो नेचुरली क्या होगा, आपका भक्ति का बाधा निकल जाएगा. मनसा क्रोध वेगम को कंट्रोल करोगे तो नेचुरली आपका भक्ति का बाधा निकल जाएगा. दैट्स व्हाट ही इज सेइंग. ऑल ऑफ द 6 urges डिस्टर्ब भक्ति. मतलब कौन से 6 urges? ये सब वाचो वेगम, ये सारे चीज भक्ति को डिस्टर्ब करते ही है कंपलसरी. अर्ज टू ईट वेस्ट एटलीस्ट हाफ एन आवर अ डे. मतलब कम से कम उनका एक मील में आधा घंटा चला जाता है, उससे 1.5 घंटा वो चला जाता है. तो इसका मतलब ये नहीं खाना नहीं हमको, है ना. तो इसका मतलब यही है कि हमको खाने से बनी, इसका मतलब ये है कि हमको सफिश जितना समय लगता है उतना तो हमको देना चाहिए. ऐसा नहीं कि बस एकदम वैक्यूम क्लीनर मोड में हम खा रहे हैं. ऐसा नहीं करना. प्रॉपरली खाना, जितना समय लगता है 15 20 30 मिनट जितना लगता है ले लो. पर ऐसा नहीं आप बैठे हैं प्लेट पे. जैसे मैं एक जगह पे गया था, तो ब्रेकफास्ट के लिए भक्त लोग साथ में बैठे. ब्रेकफास्ट के लिए बैठे साथ में, प्रसाद चल रहा था, बात चल रहा था, और थोड़ा बात करते थोड़े से आड़े हो गए, और जैसे उनका आँख खुला तब लंच टाइम हो गया था. प्लेट वहीं पे था, तो ठीक है लंच टाइम हो गया, चलो लंच ले लेंगे. तो कितना पूरा आधा दिन चला गया, है ना. तो when you don't control the urges, तो naturally there is a we lose. तो बेसिकली ये सब रूप गोस्वामी क्यों बोल रहे हैं? उनका गोल क्या है सब बोलने का? क्या है? टू फैसिलिटेट भक्ति. बेसिकली व्हाट, कि जो हमारा प्राइमरी गोल है क्या, कि हमारा भजन अच्छा होना चाहिए, है ना. उसके लिए रूप गोस्वामी इज टॉकिंग ऑल दोस थिंग्स. सो टुमारो व्हेन यू प्रैक्टिस भक्ति, वी शुड गेट रिजल्ट ऑफ भक्ति. भक्ति का रिजल्ट मतलब क्या? Like we are chanting Hare Krishna, we are going 2 hours to it, but if you are distracted, for example, for 2 hours, तो you may be like chanting, कभी होता है ना ऐसा, आपका अनुभव होगा 16 माला, फिर जितना माला करो उतना माला हो गया, लगता है 16 माला हो गया. या फिर आप मंगल आरती को आते हैं कभी कभी, तब फिर आपको लगता है मंगल आरती आए, मंगल आरती नरसिंह तुलसी सब कुछ हो गया. अरे कब हो गया? मतलब अचानक ऐसा लगता है कि कैसे खत्म हो गया सारा, है ना. तो ये सब क्यों होता है? बिकॉज हम लोग फेवरेबली भक्ति नहीं कर रहे, या फिर हमारा भजन इज नॉट गेटिंग नरिश्ड दैट वे. So Rup Goswami's primary goal is to make bhajan as favorable as possible, which happens when we can save time, and which happens when we are free from distractions. जितने अपने डिस्ट्रैक्शन कम रहेंगे उतना हम हर एक एक्टिविटी कैसे करेंगे, फोकस्ड में करेंगे. ये सारा एक्टिविटी हमको करना ही है. वाचा मतलब किससे आपको बात करना ही है, यू कांट अवॉइड. मनसा मतलब कोई ना कोई व्यक्ति कुछ तो करेगा, मन में कुछ आना ही है. अब देखेंगे कभी कभी ना व्यक्ति हमको जब डिस्टर्ब कर देता है कुछ बोलने से कुछ करने से, तो माइंड के साथ कितना समय जाता है. खास करके जपा में आप बीट बैग लेके बैठे हैं, आप सारा प्रॉब्लम सॉल्विंग तभी करते. अरे मैं उसको ऐसा बोलूंगा, मैं ऐसा करूंगा, और हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण, मैं उसको ऐसा करूंगा, और फिर मैं इसको कंप्लेंट करूंगा उसको. मतलब माइंड पूरा आपका उसमें लग गया. तो हालांकि आप हाथ में माला पकड़े हैं और माला घिस घिस के थोड़ी सी स्मूथ हो रही है, पर भक्ति कितनी अपनी भक्ति की वृद्धि कितनी हो रही है उस प्रोसेस में? कुछ नहीं हो रही ना. तो दैट्स व्हाई रूप गोस्वामी रियली वांट्स टू हेल्प अस टू फ्री फ्रॉम आवर डिस्ट्रैक्शंस. रूप गोस्वामी चाहते हैं कि हम हमारा डिस्ट्रैक्शन अपने जीवन का कम हो जाए, और जब हम भक्ति करते हैं तो पूरा फोकस्ड फॉर्म में हमारा भक्ति हो. इसलिए हमको रूप गोस्वामी इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं. अब देखेंगे कि जो मैक्सिमम अर्जेस है, इसका बेसिस किसके ऊपर आधारित है? सारे अर्जेस माइंड के ऊपर. हालांकि जीवा है, पर जीवा कब वाइब्रेट होगा? जब कुछ आप सोचेंगे. किसी को अप्रिशिएट करना है, किसी को गाली देना है, वो कहाँ से इनपुट आता है? जीवा को माइंड से आता है ना. या फिर किस पे गुस्सा होना है, किस पे गुस्सा नहीं होना है,
या फिर जिह्वा बेगम करना है नहीं करना है, माइंड से आता है ना। देखो कभी कभी देखो कितना अमेजिंग है, सो अमेजिंग that sometimes when something is cooked very nicely, something which is our favorite item, and we are like so much anticipating, हम कितना खाते हैं उसको, डबल ट्रिपल we may sometimes may eat। कभी हमको एंटिसिपेशन लगता है कि अरे हाँ आज है ना ये प्रसाद में होगा, सपोज रबड़ी प्रसाद में होगा फॉर एग्जाम्पल, में होगा होगा। तो और कभी भी क्या होता है ना, हमारे सामने रबड़ी भी आता है, हमको लगता है अरे रबड़ी ना, मेरा लास्ट टेस्ट क्या टेस्ट था यार, मतलब पूरा उसमें उसके ऑब्जर्वेशन में रहते हैं आप। और समाओ जब उसको टेस्ट करते हैं आपको लगता है मतलब कुछ अलग ही अनुभव आता है, अरे इसमें शायद नमक डाल दिया गलती से। मतलब पहले एंटिसिपेशन इतना बढ़ते रहता है माइंड में, जब रियलिटी के साथ का सामना होता है तो क्या होता है, तो फ्रस्ट्रेशन आता है। और ये सब प्रोसेस में क्या होता है, बेसिकली क्या बोल रहे हैं इसमें, बहुत सारा अपना टाइम जाता है। जो टाइम हम हमारे भजन या फिर हमारे भक्ति को वृद्धि करने के लिए यूज कर सकते थे, दैट इज वी आर यूजिंग फॉर गेटिंग इनटू सो मेनी थिंग्स। इसलिए कभी ना आप जाओगे अभी, आज नहीं कल, कल थोड़ा सोचना आपने कि मेरे दिन भर में ये 6 चीज जो हमने पढ़ा, वो कहाँ कहाँ मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ, कहाँ कहाँ फॉलो नहीं कर रहा हूँ। उसको थोड़ा एक बार मार्क करेंगे, आपको दिखेगा काफी जगह है। मतलब देर इज लॉट ऑफ होमवर्क वी नीड टू डू, विल अंडरस्टैंड। बहुत कुछ करना है अभी हमको, तो हमको समझेगा ठीक है, झगड़ते नहीं बैठना चाहिए, उसमें हमको टाइम वेस्ट नहीं जाना चाहिए, वो हमको तब तब सारा रियलाइज होगा। तो रूप गोस्वामी जो है वो एक एक हालांकि ही इज हेल्पिंग अस, पर वो स्ट्रिक्ट टीचर की तरह नहीं है। स्ट्रिक्ट टीचर क्या करता है, डंडा लेके बैठा और तुम करो, इसको करना ही पड़ेगा तुमको, ऐसा बोलते हैं। पर रूप गोस्वामी क्या कर रहे हैं यहाँ पे, वो एक पुलिसमैन की तरह भी नहीं है रूप गोस्वामी। ये 2 एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, पुलिसमैन और स्ट्रिक्ट टीचर। स्ट्रिक्ट टीचर क्या कर, डंडा लेके तुमको तुम्हारे पीछे रहेगा, पुलिसमैन वही करेगा, तुम देखते रहेगा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, ऑब्जर्व करते रहेगा। रूप गोस्वामी क्या कर रहे हैं, उनका मूड कैसा है, वो बड़े ही लिबरल है, पूरे ब्रॉड माइंडेड है। उनका एक ही ध्येय है रूप गोस्वामी जी का, क्या, कि हम सबका भक्ति और हमारा भजन अच्छा हो, दैट विल हेल्प अस सो दैट वी कैन बिकम फ्री फ्रॉम ऑल आवर negativities and we can become a sober person. Huh? We should become a sober person first. और ये धीर आप देखेंगे ना, हमने लास्ट टाइम ये गाया था इसमें, धीर अधीर जन प्रिय प्रिय करो, षड गोस्वामी अष्टकम का एक लाइन है। इसका मतलब क्या है, 6 गोस्वामी इज दे आर लाइक धीर अधीर जन प्रिय करो। धीर व्यक्ति या फिर अधीर व्यक्ति दोनों के लिए के प्रिय है वो 6 गोस्वामी। तो इनका इंस्ट्रक्शन फॉलो करके अगर हम अभी अधीर है तो हम क्या बनेंगे, फिर फॉलो करके धीर बनेंगे। इसलिए हमको रूप गोस्वामी यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं। तो जैसे मैंने बोला ये अर्ज का ये डेफिनेशन है जो आयुर्वेदा में दिया गया है। अर्ज मतलब क्या, ये आयुर्वेदिक का डिक्शनरी का डेफिनेशन है। अ मोटिवेशन टू सेटिस्फाई टेंडेंसी इज नोन एज वेग। ये कहता है ना, मोटिवेशन आता है हमको, ठीक है मुझे ये टेस्ट टेस्ट करना, ये बोलना है, एक वेग आता है। आप देखेंगे ना, कोई किसने कुछ बोल दिया तो ऐसा मैं कैसे उसको आंसर आंसर करूं, उसका एक वेग आता है, अंदर से एक पुश आता है, मुझे कैसे उसको आंसर करूं मैं। वो भी एक क्या है, वेग है। ओके तो व्हाट काइंड ऑफ स्पीच इज टू बी कंट्रोल्ड, वाचो वेगम। ठीक है आप बोले वाचो वेगम करना है, करना है, क्या कंट्रोल करना है ना, व्हाट काइंड ऑफ स्पीच यू हैव टू कंट्रोल। भक्तिनाथ ठाकुर लिखते हैं व्हाट काइंड ऑफ वेगा, इट इज भूत उद्वेगकारी वाक्य वेग। मतलब क्या, द अर्ज टू स्पीक वर्ड्स विच आर कॉजिंग डिस्टर्बेंस टू अदर लिविंग एंटिटीज। कितने बार करते हैं हम लोग, करते हैं क्या, थोड़ा एनालाइज करो। देखो इसलिए ना ये बुक जो हम पढ़ रहे हैं अभी, ये बुक जो है ना, ये सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, ये अप्लाई करने के लिए। जितना अप्लाई करोगे उतना आप गोस्वामी बनोगे।
मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई आपका हमारा एनओए खत्म होने तक सारे यहाँ पे गुस्सों में बैठे हुए रहेंगे, ये मैं दावा नहीं कर रहा हूँ, पर मैं बोलने का प्रयास कर रहा हूँ कि अगर अभी कहीं पे 1% पे होंगे तो कम से कम हमको 2 4 5% तक जाना जाना का एक इंस्पिरेशन तो मिलेगा एटलीस्ट, है ना। अगर वो भी मिल जाए तो मेरे को लगेगा कि हमारा एनओए का सारा स्टडी सक्सेसफुल हो गया। तो वाचो वेगम में क्या है, क्या बेसिकली हमको भक्ति ठाकुर बोल रहे हैं, व्हाट वी नीड टू कंट्रोल इज द अर्ज टू स्पीक वर्ड्स विच आर कॉजिंग डिस्टर्बेंस टू लिविंग एंटिटीज। मतलब कौन? ऑल, जो हमारे आसपास बैठे हैं वो भी, हमारे फ्रेंड्स खास करके। ओके, तो भक्तिनाथ ठाकुर आगे चल के भक्तिनाथ ठाकुर ये अपने डेफिनेशन को या फिर उपदेशामृत के फर्स्ट वर्स को कनेक्ट करते हैं भगवद गीता के 17.15 से। जो श्लोक इस तरह से है, अनुद्वेगकरं वाक्यम सत्यम प्रियहितं च यत् स्वाध्याय अभिशनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। तो अनुद्वेगकरं वाक्यम, अनुद्वेग हमने वेग देखा अभी, है ना। उद्वेग मतलब क्या? डिस्टर्बेंस। अनुद्वेग मतलब क्या? बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस, है ना। अनुद्वेग करम वाक्यम, जो ऐसा पूरा शरीर का पंचमहाभूत को भेदते हुए, मन बुद्धि अहंकार को भेदते हुए अंदर तक घुसे, वो है आपका अनुद्वेग करम वाक्यम, है ना। फिर वाचो वेगम का बात चल रहा है अभी। तो देखो इसमें बेसिकली ये श्लोक में हमको 5 चीज दिखाई देंगी, 5 चीजों को बेसिकली कहा गया है। सी, ये सब एडजेक्टिव्स है क्या? अनुद्वेगकरम, पर किसके बारे में कहा गया है? वाक्यम। फिर सत्यम वाक्यम, वाक्य कैसे होना चाहिए? सत्य भी होना चाहिए। फिर प्रिय वाक्यम, तो प्रिय भी होना चाहिए। और ये वाक्य कैसे होना चाहिए? हितम भी होना चाहिए। और यहां तक कहा गया है, कृष्ण यहां तक, मतलब देखो क्या मास्टरपीस है कृष्ण का। कृष्ण, ठीक है आप ये सब कर नहीं पा रहे ना, आप अनुद्वेग कर्म वाक्यम बोल ही रहे हैं, उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। अगर आप सत्यम बोल नहीं पा रहे, अगर आप प्रियम बोल नहीं पा रहे, अगर हित हित का किसका बोल नहीं पा रहे, तो एक काम करो, आप स्वाध्याय करो, बुक पकड़ो और पढ़ो, बोलो मत, मुंह बंद करो। ये कृष्ण का मैसेज है ना। तो इसका ये ट्रांसलेशन है, कोई पढ़ेगा? तो प्रभुपाद ने दिया था इसलिए प्रभुपाद लिखा है पहले मैंने। ठीक है, मेरे को ही पढ़ना पड़ेगा, आ जाएगा उसमें। ऑस्टेरिटी ऑफ स्पीच कंसिस्ट इन स्पीकिंग वर्ड्स दैट आर ट्रुथफुल, मतलब सत्यम। प्लीजिंग मतलब प्रियम, श्लोक के हिसाब से लिखा है ना वहां पे, श्लोक भी है। फिर बेनिफिशियल, हितम। नॉट एजिटेटिंग टू अदर्स, अनुद्वेगकरम। तो ये 4 चीजें हैं। एंड इन रेगुलर जो ये सब कर नहीं पाता है, तो भाई तुम मुंह बंद रखो और क्या करो? शास्त्र पढ़ो बस। हाँ, कृष्ण भी बोल रहे। अब एक आपने सुना होगा ना कभी कभी, ये मौनी बाबा लोग होते हैं, मौनी बाबा, वो बोलते नहीं है कुछ, उन्होंने कुछ व्रत लिया है कि भाई विल नॉट टॉक, बट दे हैव अ स्लेट एंड दे राइट ऑल नॉनसेंस ऑन द स्लेट, दे विल नॉट टॉक, बट देन वेग इज सो स्ट्रॉन्ग दैट उनके गुरु ने उनको बोले भाई तुम है ना मुंह बंद रखो, तुम बोलो मत। काफी यार मायावादी के संप्रदाय में चीज दिखाई देता है। गुरु जी बोलते ठीक है तुम बोलना कंट्रोल नहीं कर पाते हो, तुम मौनी बाबा बन जाओ। पर बिकॉज देखो अर्ज है ना, सी अर्ज इज लाइक अ फोर्स विद इन, unless and you channel that urge properly, you will not able to control that urge.
वो किस न किस मार्ग से बाहर आएगा। जैसे ये लोगों के लिए पार्टी पे लिखते रहते हो लोग, स्लेट पे लिखते रहेंगे, क्योंकि वो अर्ज है अभी अंदर। सी मौन करना इज नॉट लाइक सॉल्यूशन टू योर कंट्रोलिंग योर अर्ज। हम लोग, हमको लगता है भक्ति में मैं थोड़ा आज से कम बोलूंगा, सीरियस रहूंगा मैं, है ना, ताकि वाक्य कुछ बाहर नहीं आएगा। नो, यू हैव टू चैनलाइज योर वेग समवेयर। जैसे एक जगह पे राधानाथ महाराज बोल रहे थे कि हम बोलते हैं ना कि साइलेंस इज गोल्डन। सुना है एक कहावत है इंग्लिश में, साइलेंस इज गोल्डन। बट महाराज बोले इट इज नॉट जस्ट गोल्डन, बट साइलेंस कैन बिकम गोल्डन व्हेन यू टॉक अबाउट गोल्डन अवतार। मतलब क्या, बेसिकली साइलेंस इज नॉट एवरीथिंग। अगर आपको साइलेंस को आपको गोल्डन करना है, दैट मीन्स वी नीड टू टॉक, यू शुड ग्लोरीफाई कृष्णा, यू शुड डू कृष्ण कथा। जितना हम कृष्ण कथा करेंगे, उतना हमारा जो अर्ज है ना बोलने का, उतना वो क्या होगा, वो यूटिलाइज होगा प्रॉपरली। देखो ये अर्ज है ना, वेग है, वेग को आप होल्ड नहीं कर सकते कभी कभी। हालांकि हमने बोला थोड़ी देर पहले धारणीय अधारणीय, बट आप देखें काफी, और जब बोलने का जो वेग आता है ना, तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। इसीलिए हमको क्या करना चाहिए, रेगुलरली कृष्ण कथा करना चाहिए। कृष्ण कथा कहाँ करना चाहिए? इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, है ना। हमको लगता है भक्तों के साथ में आके क्या करें, तो कैन बिगिन विद कृष्ण कथा। कृष्ण कथा मतलब क्या? काफी हमको क्या लगता है ना, हमारा बहुत ऐसा वेग अंडरस्टैंडिंग होता है कि ठीक है, जब दो सन्यासी मिलते होंगे तो एक जन कृष्ण का एक पास टाइम बोलेगा, कि दूसरा कृष्ण का दूसरा पास टाइम बोलेगा, फिर तीसरा पास टाइम बोलेगा। सो इट मे बी नॉट दैट वे। मतलब कि काफी बार जब मैं देखा है, काफी बार क्लोजली, जब सन्यासी गण भी जब मिलते हैं, वो एक दूसरे का वेलबींग के बारे में पूछते हैं। तो महाराज आप कैसे हैं, हाउ यू आर डूइंग, हाउ इज भक्ति गोइंग ऑन। तो एक दूसरे के लिए केयर भी दिखा रहे हैं। केयर के प्रोसेस में क्या हो रहा है, एक दूसरे का भक्ति का भी वर्धन हो रहा है। तो इसीलिए ये जो मैंने बोला कि इसमें से 5 चीजें हैं, 5 में से 4 खास करके वो क्या है, 4 आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कंट्रोल और ऑस्टियर स्पीच। मतलब स्पीच के थ्रू उसको कंट्रोल कर सकते हैं 4 चीजों को, है ना। पर 5वां जो है, आपको अगर ये सब नहीं कर पाते आप, तो फिर आपको 5वें की तरफ जाना पड़ेगा। तो इसमें लगा, इफ यू कैनॉट डू दिस 4 थिंग्स, देन कीप क्वाइट एंड इंडल्ज इन द वैदिक स्टडी and recitation of Vedic literature. Bhaktivinoda Thakur explains that if we follow this principle, then we have controlled speech. अगर आप बोलेंगे मैं वाचो वेगम कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, तो अगर ये 5 चीज आप कर पा रहे हैं, दैट मीन्स यू आर डूइंग वाचो वेगम। इट्स क्लियर? भक्तिविनोद ठाकुर से सुना। नाउ नेक्स्ट लेवल, भक्ति सिद्धांत ठाकुर, व्हाट ही सेज। ऑफ कोर्स आप देखेंगे ना कि शास्त्र अब काफी बार एक ही चीज को ना अलग अलग आचार्य अलग अलग एंगल से दिखाते हैं हमको। तो भक्तिविनोद ठाकुर ने एक एंगल दिखाया, अनुद्वेग कर्म वाक्य, उसको कोट करके वो सब करना चाहिए। Now, Bhakti Thakur, he goes one step ahead. He says, when one's speech is in below categories, one has given into the urge to speak, that is to be curbed. Bhakti Thakur क्या बोल रहे हैं? When one's speech is in below categories, मतलब क्या क्या? The shastric speculation of the impersonalist, the various logics given about karma phala by karma kandis, the experimental statements of various enjoyment made by those who desire other than service to Krishna. तो कृष्ण के सेवा के को छोड़ के विषयों पे चर्चा करना, या फिर दूसरा क्या है, जो कर्म कांड में लोग अलग अलग लॉजिक देते हैं ना, और ये करने से ये मिलता है, ये करने से वो मिलता है, उसमें वो बात करते रहना, या फिर जो स्पेकुलेट करते रहते हैं इम्पर्सनलिज्म के बारे में। ये सब चीजों में टाइम देना, बात करना, मतलब कि ऐसे व्यक्ति को जरूरत है कि व्यक्ति वाचो वेगम करे। देखो भक्तिविनोद ठाकुर का अलग एंगल है, भक्ति सिद्धांत ठाकुर का अलग एंगल है, दोनों अलग एंगल दे रहे हैं हमको। सो एक डायमंड जो होता है ना, डायमंड का ये साइड भी होता है, उसका अलग फैसेट्स होते हैं उसके। तो आचार्य क्या करते हैं, कोई व्यक्ति एक फैसेट को दिखाता है, कोई व्यक्ति दूसरे फैसेट को दिखाता है।
अल्टीमेटली उनका गोल क्या है दोनों का? कृष्ण कथा के लिए हमारा जो ये वेग है उसको यूटिलाइज करना अल्टीमेटली। डिफिकल्ट लग रहा है? इसके इजी लग रहा है? ठीक है। बिकॉज ये सब चीजें जो है ना, ये दीज डू नॉट सर्व हितम, द अल्टीमेट बेनिफिट ऑफ अदर्स, एंड आर नॉट सत्यम। सत्य नहीं है, हितकारी नहीं है ये सब बात करना। सत्य भी नहीं है, हितकारी भी नहीं है। और so we have seen different points about Vachovegam and that strengthens the understanding of Siddhanta. तो इसीलिए मैं ऐसा बोल रहा था कि भक्ति सिद्धांत ठाकुर अलग एक एंगल दे रहे हैं हमको, और भक्ति ठाकुर अलग एंगल दे। हालांकि ओवरऑल इट्स लाइक सेम, बट एक देखने का दृष्टिकोण थोड़ा अलग है। नाउ और फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद वो क्या बोलते हैं वाचोवेगम के बारे में? ट्राई करो पढ़ने का, इनकेस हो गया तो। One should not speak in such a way as to agitate the minds of others. Of course, when a teacher speaks, he can speak the truth for the instruction of his students, but such a teacher should not speak to those who are not his students. ओके कोई बोल सकता है अरे मेरे टीचर है, मेरे गुरु है, ही स्पीकिंग अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम, और पता नहीं हितम है कि नहीं, पर मेरे मन में तो अनुद्विग्न हो गया। मैं भी कौस्तुभूत दास ने किसने कुछ तो बोल दिया और फिर एकदम मेरे मन में अनुद्विग्न हो गया। तो उसको कैसे समझे अभी हम लोग? लिखा है आपके सामने आंसर, मैं अलग क्वेश्चन नहीं पूछ रहा कुछ। So when a teacher speaks, he can speak the truth for the instruction of his students. तो टीचर को अधिकार है अपने शिष्य को सुधारने का, बट बट इंपॉर्टेंट है, बट such a teacher should not speak to those who are not his students if he will agitate their minds. इसका मतलब क्या है? किसको आप कर सकते हैं टीचर होने के बाद भी? आप किसको गाइड कर सकते हैं, किसको इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं? जो आपके स्टूडेंट्स हैं वो। अगर नहीं है तो फिर आप बस एक टीचर का काम करके चले जाइए। प्रोपाल लिख रहा है, लेना ना लेना उनका चॉइस है। फिर सब प्रोपाल लिख रहे हैं, समझ रहे हैं? दिस इज अ पेनांस एज फार एज टॉकिंग इज कंसर्न। मतलब दिख रहा है सामने, अगर टीचर फॉर एग्जाम्पल सभी हम लोग को, जैसे मैं हूं या फिर कौस्तुभ है, हम लोग क्यों आपको टीच कर रहे हैं? कौस्तुभ ने मुझे क्यों बुलाया टीच करने के लिए? आप लोगों को क्यों बुलाया? फर्स्ट सेशन बोले थे ना मुझे, फर्स्ट सेशन उधर बैठे थे हम लोग, तब मुझे बोले थे हम लोग कुछ कनेक्शन है ना। तो मतलब मैं कुछ ऐसा स्ट्रांग भी बोलूंगा तो एटलीस्ट आप लोग का माइंड एजिटेट तो नहीं होगा ना। इसीलिए हम ये फोरम में उस चीज को कर सकते हैं। पर अगर कोई ऐसा टीचर होता, ठीक है भाई, किसी ने कोई जस्ट अपॉइंटेड टीचर आ गया, ये बैच के लिए ये 2 टीचर्स है, उनको टाइम है, वो आ सकते हैं, कोई तो आ गया, तो उसमें क्या होगा फिर? ही मे नॉट एबल टू डू दैट पार्ट। वो सबको भक्ति शास्त्र सिखा के, या बुक में जितना लिखा है प्रभुपाद ने उतना सिखा के आपको चला जाएगा। और उसको ये पता नहीं है कि आपके जीवन में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसका पार्ट क्या है? टीचिंग करना, बस, है ना। अभी तो हमने परपोर्ट चालू नहीं किया, परपोर्ट चालू करना है हमको। This is penance as far as talking is concerned. Besides that, one should not talk nonsense. The process of speaking in spiritual circles is to say something upheld by the scriptures. तो क्या बात करना चाहिए? प्रभुपाद बोल रहे, जो जिस चीज को स्क्रिप्चर्स मान्यता देता है वो चीज का बात करना है हमको। One should at once quote from scriptural authority to back up what he is saying. At the same time, such talk should be very pleasurable to the ear. भले ही एकदम शास्त्र की बातें हैं,
तो कैसे होनी चाहिए? प्लेजरेबल लगना चाहिए। ऐसा लगा कान से कुछ पी रहे हैं हम लोग, फिर नहीं पी रहे, ऐसा लगना चाहिए कान से, है ना? By such discussions, one may derive the highest benefit and elevate human society. There is a limitless stock of Vedic literature, and one should study this. This is called as penance of speech. अब देखो, हमने 3 अलग डेफिनेशन देखे वाचो बेगम के। भक्तिविनोद ठाकुर एक बोल रहे हैं, भक्ति सिद्धांत ठाकुर एक बोल रहे हैं, और प्रभुपाद और एक बोल रहे हैं, है ना? तो इसका मतलब क्या, जितना वैरायटी आप देखेंगे ना, आप देखो, वैरायटी इज अ मदर ऑफ एंजॉयमेंट कहा गया है। मतलब हमको एकदम ऐसा एक्सट्रेसी आना चाहिए, अरे देखो हमारे ये आचार्य बोल रहे, हमारे ये आचार्य बोल रहे, तो उससे क्या होगा, थोड़ा हमको लगेगा कि हाँ, तो हम वहां से हमको क्या होगा, धीरे धीरे आईआईटी आने का चालू होगा। अभी फिर कोई बोलेगा ठीक है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्वीट वर्ड्स? स्वीट क्यों बोलना चाहिए? हाँ पंचमहाभूत टिकवण्यासाठी, अदर्स टिकणार नाही का? प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, तस्मात् तदेव वक्तव्यम, वचने का दरिद्रता। दरिद्रता ये तो पता है आपको, दरिद्रता मतलब क्या? भिखारी, या फिर इतना भिखारी का टेंडेंसी क्यों है आप में, ऐसा कहा गया एकदम क्रॉस लैंग्वेज में, है ना? प्रिय वाक्य प्रदान है ना, मतलब क्या? प्रदान करना, प्रिय वाक्य प्रदान, किसी को बोलना, प्रिय वाक्य प्रदान है ना, सर्वे तुष्टंति जंतव, सब लोग उससे सेटिस्फाई होते हैं, खुश होते हैं। तस्मात मतलब क्यों, तस्मात मतलब क्या, क्यों, वाई? तस्मात तद एव वक्तव्य, मतलब बोलने में इतना दरिद्रता क्यों दिखाना चाहिए, वही पूछ रहे वो, कि देखो वर्ड्स के लिए तो टैक्स लगता नहीं है। ऐसा कोई जगह है कि आपको, ठीक है, आपको अगर आप स्वीट बोलोगे ना तो आपको टैक्स लगेगा, या फिर आप स्वीट बोलोगे ना तो आपको आपको डायबिटीज हो जाएगा। इसको डिसीज भी नहीं कनेक्टेड स्वीट स्वीट बोलने से, ऐसा कोई टैक्स भी नहीं है गवर्नमेंट से, या फिर ऐसा कोई हमारा लॉस भी नहीं होता है कि भाई मेरा लॉस हो गया स्वीट बोला मैंने। पर क्यों नहीं बोलते फिर हम लोग? वो दरिद्रता क्यों है हम में स्वीट वर्ड्स का? क्या भैया, क्या हो गया? हाँ? ठीक है, तो इसलिए हमको स्वीट बोलना चाहिए, क्योंकि सारा फ्री में है सारा। बोलने में क्या जाता है, एक बार भक्ति चरण महाराज यहाँ पे आए थे, तो किसी ने महाराज को क्वेश्चन पूछा कि महाराज आप इतना प्रेम से कैसे मतलब डील कर लेते हैं, इतना प्रेम, इतना अफेक्शन कैसे दिखा सकते हैं? तो महाराज बोले कि अफेक्शन तो प्रभुपाद से आता है, मुझे भी उसको ट्रांसफर करना है, तो वाई शुड सो हैविंग पॉवर्टी ऑफ नॉट शोइंग दैट अफेक्शन टू अदर्स? तो आपने प्रेम से क्यों बात करते हैं? तो प्रॉब्लम क्या है, फ्री में तो है, महाराज बोले, मैं थोड़ी कुछ पैसा लगता है करने के लिए। तो ये हम क्यों चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि अगर हम अनुद्वेग कर्म वाक्यम कर रहे हैं, कहीं तो हमको दिखेगा, मुझे लगता नहीं कोई फ्री होगा अनुद्वेग कर्म वाक्यम से, कोई होगा तो मैं उनका चरण का धूल लेना चाहूंगा। पर अगर नहीं है तो हमको प्रयास करना चाहिए आज से प्रैक्टिस करने का। देखो, इसका मतलब हमको फ्लैटरी नहीं करना है, स्वीट वर्ड्स मतलब इज नॉट अ फ्लैटरी, इट्स नॉट बटरिंग, बटर लगाने का नहीं है ये। मतलब यू कैन बी वेरी कंजीनियल इन अ वेरी प्लीजिंग वे। अभी हो सकता है किसी का आवाज ही एकदम ऐसा ऐसा वाला आवाज हो, तो फिर क्या करेगा? क्या वो प्लीजिंग में बोल सकता है? बोल सकता है, प्रॉब्लम क्या है? जैसे होता है ना कि भले ही कोई रूप से देखेंगे ना, कोई कोई व्यक्ति रूप से बहुत सुंदर होते हैं, कोई कोई व्यक्ति रूप से हो सकता है कि इतना सुंदर नहीं है, बट अगर इफ इज वेल ड्रेस्ड, वेल मैनर्ड, तो उसका सुंदर तो उससे आता है। उसी तरह से भले हमारा आवाज कैसा भी हो, पर अगर हम प्रयास करें जेन्युइनली अच्छा प्रॉपर बोलने का, और हम कब अच्छे से बोल पाएंगे? जब अंदर कुछ अच्छा जाएगा। कानों से अच्छा जाना चाहिए ना, कानों से अगर सब इधर उधर का चीज जा रहा है,
सारा गॉसिप जा रहा है, ब्राजील पर जा रहा है, फिर क्या होगा? स्वीट नहीं बोल पाएंगे हम लोग। तो बेसिकली ऐसे हमने देखा कि अवर वाक्यम स्पीच शुड हैव दिस 4 थिंग्स। अनुद्वेगकरम नहीं होना चाहिए, सत्यम होना चाहिए, प्रिय होना चाहिए, हितम होना चाहिए। तो हम एक एक एक्चुअली पांचों का एक एक मैंने इस पे कोटेशंस है, मैं सोचा कि इसको कर लेंगे कि हम पूरा कवर नहीं कर पाएंगे फिर। ये हर एक के लिए ये एक एक चीज कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, उसके बारे में डिस्कशन आएगा उसमें। और फिर कल जब हम स्टार्ट करेंगे ये पॉइंट से स्टार्ट करेंगे आगे। 8:08 अभी किसी का कीर्तन स्लॉट था तो उसको जाना होगा। किसका क्वेश्चन आंसर है? सो हरे कृष्णा, किसे कुछ क्वेश्चंस है? ऑनलाइन, ऑफलाइन, इनलाइन? ओके सॉरी मैं देख नहीं पाया ऑनलाइन। एक मिनट आता हूं मैं। कैन यू प्लीज रिपीट द 5 थिंग्स? अक्षत प्रो क्या है ये? मैं शेयर करता हूँ अक्षत प्रो, मैं ग्रुप पे शेयर करता हूँ चीज। ओके आज के डिस्कशन बेस कोई क्वेश्चंस? Can you explain a little bit about Dheer and Adhir? हाँ धीरे से ना करंट डिस्कशन के हिसाब से देखेंगे आप, बेस्ड ऑन करंट डिस्कशन। धीर मीन्स एनीवन हु हैज दिस 6 वाचो वेगम, मनस क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदर एतान वेगान विषयेत धीरः। तो 1 लेवल ऑफ धीर इज व्हाट? ये जो ये 6 को फॉलो कर रहा है अपने जीवन में। मतलब ही इज वाचो वेगम, मनस क्रोध वेगम, मतलब वेग उसको, उस वेग के पे उसने क्या किया? उसको कंट्रोल किया है। देन ही इज कॉल्ड एज धीर। ये बहुत बेसिक लेवल धीरे का। तो जब अपना ये एक भक्ति विनोद ठाकुर का बहुत सुंदर बुक है भक्त्यालोक। ये भक्त्यालोक बुक है ना, इतना बड़ा बुक सिर्फ 2 श्लोकों के ऊपर है। एनओआई टेक्स्ट 2, एनओआई टेक्स्ट 3। तो उसमें हम डिस्कस करेंगे और डिटेल में धीरे क्या होता है। मैं दिखाना चाहता हूं आपको, देखो हमारे शास्त्र कितना, इतना वास्ट है, इतना डीप है। स्मॉल बुक का पढ़ाई कर रहे हैं हम अभी, उसका पहला श्लोक का पहला वर्ड ही हम पकड़े अभी तक। यस और कुछ? तो धीर और अधीर जो है ना प्रभु, दैट इज यूज इन कंटेक्स्ट विद 6 गोस्वामीज। मतलब उनका कैरेक्टर इतना हाई था कि धीर लोग भी और अधीर लोग भी उनके साथ अट्रैक्टेड थे। दे वुड कम एंड टेक देयर एसोसिएशन। धीर अधीर जन प्रिय करो, देवर 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 लाइक लव्ड बाय। प्रभुपाद उसका बहुत अच्छा ट्रांसलेशन करते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं द 6 गोस्वामीज वर लव्ड बाय सोबर एंड द रफियंस। रफियंस प्रभुपाद वर्ड यूज करते हैं, रफियंस। रफियंस मतलब मवाली गुंडे। तो 6 गोस्वामीज मतलब देखो, एक ही व्यक्ति को 2 टाइप के व्यक्ति ने प्रेम करना बड़ा मुश्किल चीज है। उसको परसीव नहीं कर पाएंगे। मतलब देखो क्या होता है ना, चलो आप मेरे दोस्त है ना, तो अगर मेरा शत्रु भी आपका शत्रु बन जाता है ना। बट यहां पे क्या हो रहा है कि अधीर और धीर एक दूसरे के शत्रु है एक प्रकार से, पर दोनों ही प्रेम कर रहे हैं इनके साथ, 6 गोस्वामियों के साथ। तो इसलिए धीर धीर जन प्रिय करो, दे आर डियर टू बोथ कैटेगरीज। पर अब वाई दे बिकम डियर नाउ? और डियर क्यों है? ये सब फॉलो कर रहे हैं, फॉलो कर रहे इसलिए डियर बन पा रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति अगर बहुत उसका वो अनुद्वेग कर्म वाक्यम कराने वाला व्यक्ति है, तो उसको समझ में लाइक हिम, बाय समझ में लाइक हिम। मतलब उसके बोलने से व्यक्ति एजिटेट हो जाते हैं, है ना। अभी जब मैं ये वाक्य बोल रहा हूँ आपको, मेरे को बहुत सारे एग्जांपल्स मेरे माइंड में आ रहे हैं।
फिर मेरा वाचोगेम नहीं रहेगा फिर। इसका मतलब मैं वाचोगेम हूँ ऐसा इसका मतलब नहीं है, बट आई शुड वी कैन अवॉइड। तो हम हमारे जीवन में देख सकते हैं काफी बार। तो जैसे ये सब इसमें से जो व्यक्ति कुछ फॉलो, जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल जीवा वेगम नहीं किसी का, तो व्यक्ति क्या करेगा? नहीं, खाएगा एक बात है, पर जहां से कुछ भी मिला कुछ भी खाएगा, इनडिस्क्रिमिनेटली खाएगा। तो ऐसे व्यक्ति से कोई भक्त उसे अट्रैक्ट हो पाएगा? देखें हम ट्रेन में जाते हैं, एक चने वाला आता है, सिंगदाने वाला आता है, मतलब वो हर एक चीज से कुछ ना कुछ ले ही रहा है, मतलब लिटरली। मैं एक बार ट्रैवल करता ट्रेन में देखा, कुछ सामने हमारे कोई व्यक्ति बैठे थे, तो ऐसा एक भी वेंडर नहीं थे उसको छोड़ रहे थे, वो हर एक वेंडर से कुछ ना कुछ ले ही रहे थे। अरे मैं मेरे मेरे ये बेटी के लिए मैं कान का ले लूंगा झुमका, झुमका होता है, कान का झुमका बोलते हैं ना, हाँ, तो वो ले लिया। और फिर वो छोटा छोटा प्लास्टिक के आता है ना पॉलिथीन में से, एक सिंगल दाने दाने का लाइन रहता है उसके अंदर, मायापुर जाते वक्त दिखते हैं, सिंगदाना का एक लाइन का सिंगदाना, वो भी ले लिया। नमकीन ले लिया। तो मतलब आप बोलेंगे यार ये क्या, मतलब इतना क्या है, मतलब इतना इतना बेसिक, ठीक है आपने प्रसाद ले लिया अच्छे से भी, ठीक है थोड़ा होल्ड करो। नॉर्मल ऐसे व्यक्ति से लोग इतने अट्रैक्ट नहीं होते, है ना। और तो उस व्यक्ति को लगता है कितना कैजुअल है, अरे ठीक है प्रसाद हो गया, वो टाइम हो गया, खा ही जा रहा है, दिन भर मशीन चली रहा है, कोई उसका थोड़ा सा बीच का टाइम नहीं है, उसका पॉज टाइम नहीं है। ओके, और कुछ? हाँ साहिल। सो प्रो जी, मुझे पूछना था कि कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हमें कुछ चीज पता चल गई ऑलरेडी कि ये ऐसा है, तो वी डोंट फॉल इनटू दैट ट्रैप. सो नाउ वी आर डिस्क्लोज दैट रूप गोस्वामी इज शोइंग अस कैरेट एंड ही इज ल्यूरिंग अस. सो अभी हमें तो पता चल गया है कि आप कल क्लास को आओगे ना, तब तक आप भूल जाओगे उसको। इतने अगर हम महाभागवत होते थे, तो डे वन पे हम एकदम अष्टसत्व विकार दिखाते थे, पर नहीं दिखा रहे। नहीं देखो पॉइंट ऐसा है ना, देखो कभी कभी होता है ना, हम लोग एकदम स्फूर्ति आती है और हम लोग फिर हमारा जपा रिकॉर्ड करना चाहते हैं, और जपा रिकॉर्ड करना चालू करते हैं, हरे कृष्ण चालू करते हैं। इनिशियली एक दो माला एकदम हम, अरे हाँ मेरे सामने रिकॉर्डर है, मुझे इसको बाद में प्ले करना है, तो मुझे हर एक शब्द को अच्छे से कॉन्शियसली बोलना है। थोड़ा एक दिन किया, दो दिन किया, दूसरे 2 दिन बाद क्या होता है, आप रिकॉर्डिंग सुनोगे ना, उसमें ऐसा सुना जाता है, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, सब आता है उसमें भी। तो देखो हाथ में रिकॉर्डर पकड़े हैं आप, और आपको पता है क्या कर रहे हैं आप, फिर भी आप भूल जाते हैं। अभी देखो भगवत गीता में गुह्यतमम ज्ञान के बारे में चर्चा आता है, तो सबको पता है गुह्यतम ज्ञान क्या है, पर फिर भी लोग का जीवन परिवर्तन क्यों नहीं होता है? बुक्स तो सब जगह अवेलेबल है, लाखों कितना गीता बांटे यार हम, लाख लाख 4-4 5-5 लाख गीता बांटे, फिर भी क्यों ऐसा? तो हमारा टेंडेंसी क्या है ना, कि हम अच्छा कुछ देख लेते हैं, स्फूर्ति आती है हमको, स्फूर्ति आली, और अगले दिन फिर स्फूर्ति पूरा डाउन हो जाता है अपना। इसलिए नित्यम भागवत सेवा क्यों कहा गया है, कि डेली फिर डेली चार्जिंग होगा अपना, फिर जैसे मोबाइल का डेली चार्जिंग लगता है ना, डेली चार्जिंग करेंगे तो ये हमारा मोबाइल चलते रहेगा। और बोले अरे एक मैंने आज है ना पूरा 12 घंटा मोबाइल चार्ज किया है, तो अगले 10 दिन में चार्ज ही नहीं करूंगा, तो फिर क्या होगा, कुछ दिनों में वो डिस्चार्ज हो जाएगा। तो ये मत समझिए कि अभी आपको पता चल गया है कि ये सीक्रेट है, बट मैं आपको अगर अगले संडे पूछूंगा या फिर कल ही पूछूंगा, तो शायद हो सकता है कि हमको याद नहीं आता है कल की क्लास में क्या हुआ है, इसलिए हर क्लास से पहले हमको रिवीजन लेना पड़ता है ना, उसका चिंता मत करो। हाँ हाँ, आया है ठीक है ठीक है ठीक है, नो रूप गोस्वामी प्रभु ने बोला है, बोलिए। कि अ गुरु शुड नॉट मेक मैनी डिसाइपल्स. अगर वो मैनी डिसाइपल्स नहीं बनाएंगे तो फिर डिसाइपल्स के ऊपर एक तरह से मतलब हाँ मतलब अनफेयर नहीं, मतलब एक ऑब्स्ट्रक्शंस आ जाएंगे कि उनको ये गुरु से अगर शिक्षण वगैरह वो सब. देखो जब दीक्षा का बात आता है, इट्स मोर ऑफ अ दीक्षा गुरु। शिक्षा तो आप किसी से भी ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल भानु महाराज दीक्षा नहीं देते,
पर हजारों लोग उनके दीक्षा मतलब क्या बोलते हैं शिक्षा डिसाइपल से। लेकिन प्रभु जी उनको दीक्षा अगर उन्हीं से लेना है फिर वो एक वो उनको देना ही नहीं है, उनका पर्सनल चॉइस है। कितने लोग हैं, अभी महाराज जब इधर आए थे रिसेंटली जुलाई में आए थे, 3-4 लोग मेरे सामने मिले, महाराज हमारे हमको दीक्षा लेना। मारे बोले आप इनसे दीक्षा ले लो, मेरे लेक्चर सुनते रहो, बस शिक्षा लेते रहो। तो आई एम सेइंग इट्स अ चॉइस। जैसे मैंने बोला ना कि जब मैनी का बात मैंने किया था, तो इंडिविजुअल डिवोटी का चॉइस है अभी वो कितना करे, है ना। वो ही कैन गिव थाउजेंड्स ऑफ डिसाइपल्स आल्सो, मैंने एग्जांपल भी दिया, और ही कैन टेक फ्यू डिसाइपल्स आल्सो। हर एक का पर्सनल चॉइस है। तो बिकॉज मैंने बोला ना कि पर्सनल चॉइस क्यों है, क्योंकि स्क्रिप्चर्स आर दे, वी कैन एनफोर्स थिंग्स इन आवर वैदिक ट्रेडिशन। यस, कोई और? सी मेन जो है हमारा, व्हाट इज इंपॉर्टेंट, शिक्षा और दीक्षा, बोथ आर इंपॉर्टेंट। दीक्षा एज अ प्रोसेस, एज अ फॉर्मेलिटी, उसका एक अपना एक है। उसी के साथ व्यक्ति का जो भक्ति में ग्रोथ करते हैं वो कौन करते हैं एक्चुअली? प्राइमरली क्या होता है हमारे केस में, जो हमारे प्राइमरी शिक्षा गुरु होते हैं, हम जनरली हमारे दीक्षा गुरु जनरली होते हैं इन जनरल। पर कुछ ऐसे बहुत रेयर केसेस, जैसे भानु महाराज का मैंने एग्जांपल दिया, काफी लोग उनके शिक्षा डिसाइपल्स हैं, बट दे आर नॉट हिज डायरेक्ट डिसाइपल्स, मतलब दीक्षित डिसाइपल्स नहीं है उनके। दीक्षा में प्रोसेस होता है, फॉर्मेलिटीज होता है, सारा यज्ञ होता है, ताप होता है, वो सब होता है। तो उससे क्या होगा बोले आप? नहीं, मुझे लगता नहीं है, क्योंकि शिक्षा गुरु तो अपना शिक्षा दे ही रहा है उसको, नंबर एक। तो मेन थिंग है शिक्षा, मतलब इन द सेंस ऑफ वो डिसाइपल के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है उसके लिए। हमें वही बोला ना कि जो हमारे प्राइमरी शिक्षा गुरु होते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल कोई भक्त सपोज लोकनाथ महाराज के, मतलब उनके क्लासेस से बहुत इंस्पायर्ड है फॉर एग्जाम्पल, उन उसके लिए वो लेक्चर सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब उसको सबसे ज्यादा इंस्पिरेशन वहां से मिलता है। तो लोकनाथ महाराज उसके लिए क्या बने, पहले पहले शिक्षा गुरु बने, और वो प्राइमरी शिक्षा गुरु उसके क्या बन गए फिर बाद में, दीक्षा गुरु बन गए। तो हाँ, ये बात फाइन, उससे फर्क क्या पड़ रहा है उसको, फॉलोअर को, डिसाइबल को फर्क क्या पड़ रहा है? उनका वाणी तो है, उनके लेक्चर्स है। सी देखो मुझे ये बोलो, इन जनरल बहुत कम ऐसे भक्त होते हैं जिनको अपॉर्चुनिटी मिलता है गुरु से डायरेक्ट इंटरेक्शन करने में। मेजोरिटी डिसाइपल जो होते हैं ना, उनके लेक्चर के माध्यम से ही उनसे शिक्षा लेते रहते हैं, और दैट इज एनीवेज हैपनिंग हियर आल्सो। वो सिर्फ उनको दीक्षा नहीं दे रहे, और शिक्षा तो चालू है उनका। तो उनसे लॉस क्या है उनका, मतलब व्हाट इज द लॉस? नहीं है अभी, अब देखेंगे ना, काफी सारे एग्जाम्पल हमारे सोसाइटी में है। काफी भक्तों को पर्टिकुलर गुरु से दीक्षा लेना था, या फिर जो सन्यासी बने थे जस्ट, को दीक्षा लेना था, पर वो बोले कि मैं दीक्षा नहीं देने वाला हूँ, अब उनसे ले लो, तो उनको रोल करना पड़ा। तो वही बोल रहे ना, आप क्या बोल रहे हैं? भी वो है, फिर अभी उसका सोल्यूशन क्या है, मतलब आई एम नॉट वेरी श्योर इसका सोल्यूशन क्या होगा। इट्स अ, वही बोल रहा हूँ, इट्स अ पर्सन चॉइस, मतलब इवन दोनों साइड से, वो गुरु को भाई मैं दीक्षा दूंगा नहीं दूंगा वो उसका पर्सन चॉइस है, और शिष्य को किस व्यक्ति से दीक्षा लेना वो भी उसका चॉइस है एक तरह से। अगर बोला मुझे आपसे ही लेना है, पर वो बोल रहा है मेरे को इच्छा नहीं देने का, यू कैन फोर्स। जब कदम कानन महाराज जो थे, जयदत्त महर्षि के डिसाइपल थे, जयदत्त महर्षि एकदम फिंगर टिप्स पे गिनने इतने डिसाइपल्स है, 7-8, 19 डिसाइपल्स, है ना। तो फिर भी उनका चॉइस था, पर फिर कदम कानन महाराज के पास काफी डिसाइपल्स थे। तो इंडिविजुअल चॉइस है वो, हर एक जन अपना कॉल लेता है
लोकनाथ गोस्वामी, है ना, वो तो बोले मैं दीक्षा दूंगा ही नहीं, बट फाइनली फिर डिसाइबल का डिटर्मिनेशन था ना कि मैं दीक्षा लेके रहूंगा। हाँ, तो क्या होता है ना, वो डिसाइबल के इसमें भी होता है। जैसे आपको और एग्जाम्पल दे, जयदत्त महाराज दीक्षा देते नहीं है, सबको पता है, फिर पुणे के कुंजवेर के ब्रह्मचारी उनसे दीक्षा लिया, तो डिटरमाइन था। हाँ, प्रवीण कृष्ण प्रभु अभी नाम हो गया उनका। तो मैं एग्जाम्पल्स क्यों दिला पर्पसफुली आपको, क्योंकि ये बताने के लिए कि व्यक्ति का डिटर्मिनेशन उसमें काम करता है। और बोले कि जो भी हो जाए, मैं अभी उसमें ये होता है, अभी काफी बार जैसे कुछ कुछ गुरु बोल सकते हैं, ठीक है आप, है ना, आप मेरे से कनेक्टेड रहो, मेरे से शिक्षा लो, पर आप उनसे लो अभी शिक्षा, कि मैं देने नहीं वाला, फिर मैं देना नहीं चाहता। तो एक तरह से आपका कनेक्शन तो अभी भी है उनके साथ। कुछ क्वेश्चन आया तो आप कनेक्शन तो रख रहे हैं आप वैसे। हाँ, भले आप बोल सकते हैं मैं इनके दीक्षित डिसाइपल हूँ और इनका शिक्षा डिसाइपल हूँ, उतना फर्क है। हमारे पे इतना कल्चर नहीं कि बोलने का मैं इनका शिक्षा डिसाइपल हूँ। ठीक है, थैंक यू। श्रील रूप गोस्वामी पाद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, थैंक यू।